Hello, hi, namaskar everyone. I welcome you all on the behalf of FT GOAT. Here we are discussing GOAT Cat 1, your mock DLR section. So let's get started with the first set for the day. So it says few things which you all must have noticed or read. So let's see what all is given to us. So in the year 2050, FTA Futuristic Talent Assessment will be the new global standard for management. The exam consists of three zones: NLA, QR, or DSI. Each zone carries 50 marks, marking the total test worth 150 marks. Questions in FTA are divided into three complexity tiers or tiers: Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1, 1 mark per question. Tier 2, 2 marks per question. Tier 3, 3 marks per question. Each tier must have at least 10 questions in the entire test. Now that's another important information. At least 10 questions I need to ensure. Each zone means these three subjects basically, NLA, QR and DSI, must feature at least one question. So there should be one question from each zone from every tier. That's brilliant. And the total number of questions in each zone should be different. So the total number of questions from NLA, QR and DSI must vary. I hope this part is very clearly understood by everyone. Now, what am I told or given apart from this? I think we need to straight away start with the question. So question number 1. I hope the information is very clearly understood by everyone. So I'll start with question number 1. Now what does question number 1 say? So this is our instruction. Question number 1. What is the minimum possible sum of the number of questions in the QR and DSI zones together? So it says what is the minimum number of, I'll begin with this data only. I'll try to put all the data here only so that everything stays with us at this stage only, because I need to prefer the data. I need to see the data along with the questions. So let's see the question and let's try to put up the data, what all we are given or said or told. What is the minimum possible sum? So see, minimum possible sum of the number of questions in the QR and DSI zones together. Now how do I do that? Requirement है कि मुझे QR और DI जोन में क्वेश्चंस का जो सम है वो मिनिमम रखना है, मिनिमम पॉसिबल सम. अब ये कैसे पॉसिबल है वो सोचना शुरू करते हैं. देखो कुछ चीजें हमारे पास NLA है, QR है और DSI है. वी हैव दीज थ्री सेक्शंस. और एक और कंडीशन है कि मेरे पास लेवल वाइज क्वेश्चंस हैं, मतलब टीयर 1 आई विल से, टीयर 2 आई विल से और टीयर 3. जैसा टीयर है उतने ही मार्क्स है, मतलब 1 मार्क पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन. अब आप रिक्वायरमेंट अगर समझ रहे हो तो आपको बहुत इजीली वर्कआउट करते आ जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है या कौन सा एक आइडियल या स्टैंडर्ड केस आपके लिए वर्क करेगा. ध्यान से देखना. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल सम? सो मुझे सम जो है वो पॉसिबल मिनिमम करना है. किसका? क्यूआर और डीएसआई जोन्स का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मुझे मिनिमाइज करना है. अब आप ऐसे सोचो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमाइज कब किए जा सकते हैं? क्या फिक्स्ड है? फिक्स्ड ये है कि आपको एनएलए भी 50 मार्क्स का बनाना है, आपको क्यूआर भी 50 मार्क्स का ही बनाना है और आपको डीएसआई भी 50 मार्क्स का बनाना है. अच्छा, एक और चीज कि मेरे पास फिक्स हो चुका है कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 से मुझे क्वेश्चंस लेना है. आई होप सारा डेटा हमारे सामने है, बस चीज रखना शुरू करते हैं. देखो इस बात का मतलब समझना, ईच जोन मस्ट फीचर एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरी टीयर. इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे हर टीयर से कम एक क्वेश्चन रखना, मतलब सारे ये जो ब्लॉक्स हैं इन सब में कोई ना कोई नंबर तो आएगा 0 से बड़ा. आई होप ये पार्ट आप सभी को समझ आ रहा है. अब मेरे पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं. इसके अलावा अगर मैंने काम करना शुरू किया अपने डेटा पे तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या है हमारे पास, वो समझना शुरू करते हैं. देखो भाई, मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है दैट ईच टीयर मस्ट हैव एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इन द एंटायर टेस्ट. ठीक है, मैं ये भी इंश्योर कर लूंगा कि हर टीयर में 10-10 क्वेश्चंस तो ही. टीयर मतलब आई होप आप समझ पा रहे हो, आपके पास ये रहे टीयर्स 1, 2, 3. सो हर टीयर के कम से कम मेरे पास कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? 10-10 क्वेश्चन. मतलब एनएलए, क्यूआर और डीएसआई तीनों का सम अगर मैं करूं तो 10 क्वेश्चंस. इन तीनों मतलब रो वाइज सम मिनिमम 10 होना चाहिए. आई होप आपको रिक्वायरमेंट समझ आ रही. अगर आपने ये रिक्वायरमेंट्स को समझ लिया, मतलब डेटा को समझ लिया, तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस इजीली आप वर्कआउट कर सकते हो. तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा. अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक अब मैं इस पे काम करना शुरू करता हूं कि मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की है. हमें क्यूआर और डीएसआई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम रखने हैं. अब ये कैसे पॉसिबल है? सर अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम रखना है विद दिस कंस्ट्रेंट कि आपको 50 नंबर का तो पेपर बनाना ही है क्यूआर और डीएसआई का, तो आप एक काम ये क्यों नहीं करते कि जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप मैक्सिमाइज कर दो.
क्योंकि अगर आपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस खा जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो 50, अगर मैंने 50 यानी 15 का ट्रिपल लिया, 15 का ट्रिपल मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस ले लिए, आई होप आप समझ रहे हो, 15 इंटू 3 मतलब 15 क्वेश्चंस ले लिए 3-3 मार्क्स वाले, तो आप समझो मैं 45 मार्क्स तो यही कंज्यूम करवा दे रहा हूं। उससे फायदा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमाइज हो रहा है। आई होप आप लॉजिकली समझ पा रहे हो। हाईएस्ट 3 मार्क्स वाले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, आई होप आप ये भी समझ रहे हो कि मैं 15 से ज्यादा यानी 16 नहीं ले सकता। आप लॉजिकली सोचो, अगर मैंने 16 क्वेश्चंस यहां ले लिए होते, मान लो मैं 16 ले लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ पाए कि 16 लेने में बुराई या गलती क्या होगी। देखो अगर हमने लिया 16, तो 16 इंटू 3 48 मार्क्स आप यहीं कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर आपने 48 मार्क्स यहीं कंज्यूम कर लिए तो आपके पास इन दोनों सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 ही मार्क्स बचे। और अगर 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन यहां भी डाला तो यहाँ पे आपको 0 क्वेश्चन डालने होंगे, जो कि अलाउड नहीं है। आई होप आपको डेटा समझ आ रहा है। सो मेरे पास जो एक स्टैंडर्ड बेसिक मिनिमम जो डेटा समझ आ रहा है वो ये कि किसी भी, ये अगर मैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करूं तो उसके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो अवेलेबिलिटी है वो ये कि मैं मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ही रख सकता हूं। क्यों, आई होप आपको रीजन समझ आ रहा है। तो मान लेता हूं मैंने 15 क्वेश्चन रखे और मार्क्स कितने ले लिए भाई, 3 मार्क्स वाले। तो ये हो गया मेरे पास टोटल अभी तक कितने, 45 मार्क्स। अब क्या हुआ साहब, अब हमें आगे देखना है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 1 मार्क वाले क्वेश्चन। तो रिक्वायरमेंट यही है कि क्यूआर और डीएसआई में मिनिमम क्वेश्चंस होने चाहिए। तो मैं 2 मार्क्स वाले भी ज्यादा से ज्यादा रख लेता हूं। हालांकि अब ज्यादा कोई स्कोप है नहीं, मेरे पास 45 प्लस 5 मतलब 5 मार्क्स की गेम है। तो मैं कोशिश ये कर लेता हूं, लेट्स से यहाँ पे मैंने 2 मार्क्स वाले भी 2 क्वेश्चन डाल दिए। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो 2 2 4 यानी 45 प्लस 4, अब मैं 49 के क्लोज आ चुका हूँ। अब हमारे पास स्कोप क्या है, आई थिंक कुछ भी नहीं है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन हम डाल देंगे ताकि हमारा टोटल सम 50 हो जाएगा। अभी तक तो हमारे डेटा में कंसिस्टेंसी है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है अभी तक जितना डेटा हमारे पास है, क्योंकि हमने और कॉलम्स को भी छेड़खानी की नहीं है। तो मैं क्यू आर के ऊपर अब काम करना शुरू करता हूं। देखो एक ही रिक्वायरमेंट अगर वायलेट अब होनी होगी तो होगी, जो कि ये कि ध्यान से पढ़िएगा कहां लिखा है डेटा, फ्रॉम एवरी टीयर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच जोन इज डिफरेंट। आप समझना, मतलब एनएलए के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए, क्यूआर के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए और जो डीएसआई के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर अभी फिलहाल मैं डीएसआई के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालूं तो आ रहे हैं 15 प्लस 2 17 प्लस 1 दैट्स 18। सो अभी फिलहाल मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं टोटल डीएसआई में दे आर 18। आई होप ये बात आप सभी को समझ आए। अब ये इंश्योर करना है कि क्यूआर और एनएलए में 18 क्वेश्चंस ना आ पाए। आई होप आप समझ रहे हैं क्यों। नाउ लेट्स वर्क इट फर्दर। अब और क्या क्या करना हमारे पास पॉसिबल है। अब मैं क्यूआर में भी ये करने की कोशिश करता हूं क्या, कि क्या मैं क्यूआर में भी 15 क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले रख सकता हूं। हाँ रख तो सकते हैं। तो उससे कितने मार्क्स आ गए, 45 का तो बन चुका है पेपर। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैंने यही अरेंजमेंट लिया होता 2 और 1 वाला तो अगेन मेरे पास 18 क्वेश्चंस बन जाते और वो इस कंडीशन का वायलेशन होता। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको स्वैप करने की कोशिश करता हूं। तो अगर मैंने स्वैप किया, स्वैप करने का मतलब क्या है, मैं 2 मार्क्स वाला एक ही क्वेश्चन ले लेता हूं। आई होप मेरे पास ज्यादा चांसेस है नहीं। तो आप समझो 45 प्लस 2 दैट इज कितना, 47। तो अब स्कोप यही है कि आपको 1 मार्क वाले 3 क्वेश्चंस तो लेने ही पड़ेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्यों, क्योंकि कोई और तरीका आपके पास है नहीं, क्योंकि आपको हर सेट में, हर हर जोन में और हर टीयर में एक क्वेश्चन तो मिनिमम डालना ही है। और भी कई सारी कंडीशंस है। तो अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो मेरे पास 15 और एक 16 और 3 आपके पास 19 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं। आई होप आप इसको 19 से कम कर नहीं सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे 15 एक मैक्सिमाइज कर दिया है। आई रिपीट, 15 प्लस 3 18 प्लस 1 19। सो आई एम गोइंग टू हैव 19 क्वेश्चंस हियर। सो ये डेटा मेरे पास अभी फिलहाल आ रहा है। यहां तक आई होप कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं है होपफुली। पर अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि 19 प्लस 18 शुड बी द आंसर, क्योंकि अभी मुझे ये देखना है कि एनएलए इस डेटा को अलाउ कर रहा है या नहीं। तो मैं चेक करना शुरू करता हूं। मैं एनएलए को इसके अकॉर्डिंग अब सेट करना शुरू करता हूं विद दिस कंडीशन इन माइंड कि हर टीयर में कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए थे। आई होप आपको याद आ रहा होगा डेटा। तो हर टीयर में अगर कम से कम 10 क्वेश्चन होने चाहिए थे तो वो मैं कैसे इंश्योर करूंगा, अब मैं वो समझना शुरू करता हूं। ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से अगर मैं समझूं तो क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्यूआर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं सर। क्यूआर में और डीएसआई में अगर टीयर 1 में देखा जाए तो 3 प्लस 1 4 क्वेश्चंस है। तो अगर 4 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट, अच्छा एक और बात, यहां पे तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एनएलए को तो आप जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा है क्यूआर और डीएसआई में। तो बस मैं ये इंश्योर करते चलता हूं कि मैंने यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी फॉलो किया नहीं कि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमम हर टीयर में 10 हो जाए।
मुझे थर्ड ईयर को लेके कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में 15 और 15 में ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस डाल चुका हूं, तो यहाँ पे मिनिमम 10 क्वेश्चंस वाला इश्यू है ही नहीं, तो मैं इसको लेके कंसर्न नहीं हूं। मेरा कंसर्न है 3+1 4 और 2+1 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 से कम हो रहे हैं, तो पहले मैं इनकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हूँ, हो पा रही है या नहीं। तो मैं कह रहा हूँ 3+1 हो जा रहा है 4, 4 में अगर 6 ऐड किया होता तो यहाँ पे मिनिमम 10 क्वेश्चंस वाली रिक्वायरमेंट सेट हो जाएगी। अच्छा, और देख लेते हैं 2+1 3, यानी यहाँ पे होने चाहिए थे आपके 7 क्वेश्चंस, तो आपकी मिनिमम 10 वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती। उस वजह से आई होप अगर मैं समझूं तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही है जरा देख लेते हैं भाई। अगर मैं यहाँ समझूं तो 6 और 14, आई होप आप देख पा रहे हो, एक मार्क वाले 6 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स वाले 7, यानी मैंने कितने मार्क्स ले आया हूँ, 20 मार्क्स तो मैं लेकर आ गया। तो अभी बचा क्या केस है भाई, अभी मेरे पास बच रहे हैं 30 मार्क्स। 30 मार्क्स अलॉट करने के लिए आई होप मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा उसके लिए, सर 30 मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस यहाँ डाल दो। आई होप आप समझ पा रहे हो कि इस डेटा सेट या इस अरेंजमेंट में कहीं से कहीं तक हम कोई भी गड़बड़ ऐसी नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास किसी भी तरीके से डीएसआई और क्यूआर में कोई भी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे होंगे। आई होप ये बात आप सभी को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ रही है। अगर मैं ये समझना चाहूं तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि एनएलए में कितने क्वेश्चंस होंगे, जब मैंने इसे मिनिमाइज किया तो आई वुड से 10 + 7 + 6, दैट इज आई बिलीव 19 और 18 के इक्वल तो नहीं है, क्योंकि आप याद करो आपके पास सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जो ये कह रही थी कि ईच जोन मस्ट फीचर एटलीस्ट वन क्वेश्चन इन फ्रॉम एवरी ईयर एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच जोन शुड बी डिफरेंट। तो आप यहाँ देखोगे तो 7 + 6 13, 13 + 10 इज क्लियरली हाउ मच, 13 + 10 इज 23। सो यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं 23 क्वेश्चन। सो आई होप हम किसी भी तरीके की कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहे हैं जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है। सो आई वुड से कि अगर मुझसे किसी ने कहा व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल सम क्यूआर और डीएसआई, तो दैट शुड बी 19 + 18, और 19 + 18 अगर आप करें तो 19 + 1 20 + 17 दैट इज 37। आप ऑप्शन सी मार्क कर सकते हैं। सो आई होप यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि ऑप्शन सी हमारा क्यों करेक्ट आंसर होगा। विद दिस अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट वो समझना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें कोई डाउट या हेजिटेशन हमें नहीं है। लेट्स वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ द टेस्ट हैड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लुक एट दिस, वो कह रहा है टेस्ट में कम से कम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। आई थिंक मैंने वही किया है। अगर आप ठीक से देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही क्वेश्चन नंबर 2 फॉलो कर रहा है, अगर आप ठीक से देख रहे हो तो। वो कह रहा है द टेस्ट हैड स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, तो उस केस में आपके पास वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल इन द क्यूआर जोन। अब मसला ये है कि क्यूआर में मैक्सिमाइज करना है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं, मान लो मैं क्यूआर हटा के यहां लिख दूं। आई रिपीट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं भाई, कि मैं अगर क्यूआर यहां लिख दूं और मैं एनएलए यहां लिख दूं, आई होप एनएलए था, बिल्कुल एनएलए था, तो आपको क्यों नहीं लग रहा कि पहले ही क्वेश्चन को करने से सेकंड क्वेश्चन आंसर हो जा रहा है। आप समझो क्यों नहीं होगा। इफ द टेस्ट हैड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपके पास कोई तरीका ही नहीं है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इससे कम करने का। क्यों? क्योंकि जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है मैंने उनको मैक्सिमाइज कर दिया। सर आप कहोगे कि सर आप इसको भी तो बढ़ा सकते हो, अरे भाई स्कोप ही नहीं है, आप इसको 10 से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब अगर आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो सर यहाँ पे कम हो सकते, पर अगर मैंने ऊपर ये 1 और 2 मार्क्स को कम किया तो आई होप आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो। दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर हम वो हर रो वाइज जो 10 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है मिनिमम, वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द ओनली, रादर इसके अलावा और कोई भी केस होगा, पर उसमें फाइनली आउटकम वाइज फीचर यही सेट होगा 23, 19 और 18। अगर आप कोई और पॉसिबिलिटी भी वर्कआउट करते हैं तो इसे और ज्यादा फर्दर मिनिमाइज किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वो ऑप्टिमाइज्ड केस है अगर मैं कहूं तो फाइनल आउटकम जो आपका निकल के आएगा उसको लेकर। सो अगर वो कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, तो आई थिंक 23, 19 और 18 वाले ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कॉलम वाइज स्वैप हो सकते हैं, पर ये फीचर यही रहेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल इन द क्यूआर जोन। तो क्यूआर में मैक्सिमाइज करना है, तो फायदा यही हुआ कि 19 और 18 में और 23 में सबसे बड़ा कौन है भाई हमारे पास, 23। सो माय आंसर विल बी 23। सो आई होप आप समझ रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आर लिंक्ड। अगर आप ठीक से देख रहे हो तो दोनों क्वेश्चन आंसर किए जा सकते हैं बहुत इजीली। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। विद दैट लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। द क्वेश्चन नंबर 3 सेज if the test had the largest possible total number of questions। now please understand, इसी का रिवर्ट करना है, इसी का इनवर्स सोचना है, मतलब करना वही सब है पर थॉट प्रोसेस ऑपोजिट होगी। अब जब मुझे मिनिमाइज करना था, मैंने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज किया था ताकि मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो जाए।
अब मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमाइज करना है तो मैं 1 मार्क वाले क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करूंगा। आई होप बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है, पर सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए तो एक बार वापस मुझे पूरा टेबल बनाना होगा। ये तो आई होप आपको समझ आ रहा है। फिर वो क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट मस्ट हैव बीन द डीएसआई जोन। तो मुझे डीएसआई के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिनिमाइज करने हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो मैं ये डेटा कहीं और प्लॉट करने की अगर कोशिश करूं तो क्या ये पॉसिबल है कि ये वाला डेटा नहीं मिटेगा? ये मिटे या ना मिटे, हम तो इसे कहीं और क्रिएट करते हैं, देखते हैं कहाँ हमारे पास स्कोप आ रहा है। सो आई विल से मैं ये वाला स्पेस थोड़ा यूटिलाइज करूंगा, यहाँ पे थोड़ी ओवरलैपिंग होगी। आई होप दैट वर्क्स फॉर यू एंड दैट वोंट बॉदर यू। या फिर अगर मैंने इसे चेंज किया तो आई थिंक आई विल गेट मोर स्पेस। लेट्स सी वेदर आई गेट इट और नॉट। तो वी आर गेटिंग सम स्पेस, पर यस आई थिंक आई शुड गेट सम। यस, ब्रिलियंट। तो यहाँ पे आई थिंक हमारे लिए काम करना चाहिए, बहुत बढ़िया। सो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम परेशान हुए स्पेस को लेकर। सो आई थिंक इट इज वेरी। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन जितना मुझे याद आ रहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो ये था भाई कि आपके पास आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार क्या करने हैं, मैक्सिमाइज। तो कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करने की। कंडीशंस मुझे जितनी याद है वो लिखी हुई हैं, बस क्वेश्चन के हिसाब से हम चीजें वर्कआउट करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास सेक्शंस होंगे QR, NLA और आपके पास एक DSI। ये डेटा मैं रख रहा हूं अपने साथ क्योंकि हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में मुझे ये वाला टेबल या ये वाला टेबल रेफर करना पड़े, तो मैं नीड के अकॉर्डिंग अपने डेटा को एडजस्ट कर लूंगा, मतलब रेफर कर लूंगा। तो डेटा अभी हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं और सिस्टमैटिकली रख रहे हैं। हमारे पास Tier 1, Tier 2 और Tier 3 है। कंडीशन वही थी कि टोटल मार्क्स 50 होने चाहिए, तो 50 मार्क्स, 50 मार्क्स और 50 मार्क्स मेंटेन चलने चाहिए। बढ़िया। अब क्या बोल रहा है वो? आई थिंक अब रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने चाहिए दैट शुड बी, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम DSI और लार्जेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें चाहिए, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस मैक्सिमम होने चाहिए और DSI से टोटल क्वेश्चंस मिनिमाइज करने हैं, ठीक है। वो DSI को हम बाद में समझेंगे। मैं मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं, तो मैं कैसे करूंगा वो सोचना शुरू करते हैं। मैं मैक्सिमाइजेशन अगर अचीव करना चाह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, और उस फीचर को जब इनेबल किया तो DSI में कितने क्वेश्चंस मिनिमम होंगे ही होंगे, वो विचार हम सोचना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि मुझे 50 मार्क्स लेकर आना है, बिल्कुल सही बात है। तो 50 मार्क्स लाने के लिए मैं 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस रख सकता हूं मिनिमम? तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ठीक है, 3 मार्क वाला एक रख लिया, 2 मार्क्स वाला एक रख लिया। तो 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन हो गया। तो क्या ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो है। अगर कुछ वायलेशन होगा तो बैक ट्रैक कर लेंगे और इसे वापस से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है इस असम्पशन के साथ। आई होप आपको समझ आ रहा है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि 3 मार्क वाला अगर एक ही क्वेश्चन दिया और 2 मार्क वाला अगर एक ही क्वेश्चन दिया, तो 1 मार्क वाले में मैक्सिमम क्वेश्चन ले पाऊंगा और एक एक तो मिनिमम लेना ही है। तो यहाँ पे मेरे पास मार्क्स कितने हो गए? सिर्फ 3 + 2, मैंने 5 मार्क्स ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए। ऑल्दो मेरे पास 50 मार्क्स का पूल अवेलेबल है, तो अभी भी मैं 45 मार्क्स लाने के लिए 45 क्वेश्चंस रख सकता हूँ 1 मार्क के। आई होप ये एक अच्छा सिनेरियो है। अच्छा, इस वजह से मेरे पास यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए वो भी जरा देख लेता हूँ। तो जब मैंने ऐसा किया तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जब मैं समझूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 45 + 1 + 1 दैट इज 47। तो QR में हमारे पास आ रहे हैं टोटल 47 क्वेश्चंस। आई होप ये बात समझ आई। अब सेम लॉजिक मैं NLA पर लगा रहा हूँ। तो मैं NLA पर अगर सेम लॉजिक लगाने गए तो अगेन वही बात कि अगर मैंने यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, टोटल 47 हो जाएंगे, जो कि मैं कर नहीं सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के लिए सेम नहीं होने चाहिए। तो हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं। उल्टा मतलब क्या? उल्टा भी क्या, वो तो 1 ही है। तो मैं कहाँ से चीजें एडजस्ट कर सकता हूँ ऐसा कि सर यहाँ पे आपने 3 मार्क का एक ही क्वेश्चन लिया ताकि आपका डेटा मतलब मार्क्स कम से कम रिड्यूस हो, ताकि आपके पास क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए नंबर टोटल मार्क्स और अवेलेबल रहे। पर 2 मार्क्स वाले मैंने 2 क्वेश्चंस ले लिए। आई होप आप समझ रहे हो ऐसा करने का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे मैंने कितने मार्क्स कंज्यूम कर लिए? आई थिंक 2 2 4 + 3, आई थिंक मैं 7 मार्क्स कंज्यूम कर चुका हूँ। तो 50 - 7 43 मार्क्स आई एम स्टिल लेफ्ट विद। सो कैन आई नॉट से कि अभी भी मैं 43 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के डाल सकता हूँ? आई होप आप समझ पा रहे हो कि अभी तक हमने किसी भी कंडीशन को मोटा मोटा वायलेट नहीं किया है, अगर चीजें देखते हुए चल रहे हैं तो। अब क्या? अब आई थिंक हम चीजें देख लेते हैं। तो अगर 43 मार्क्स टू 43 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 43 + 2 45 + 1 46। बहुत बढ़िया। सो हम ये इंश्योर कर पा रहे हैं कि अभी भी मैंने 46 क्वेश्चंस तो मेंटेन किए हैं। आई होप यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है।
अब जब मैं मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूं तो मुझे ये भी तो ध्यान रखना है कि हर रो में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अलाउड है दैट इज कितना, सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने चाहिए वो 10 होना चाहिए। तो अगर अब मैं उस कंडीशन को भी इंश्योर करना स्टार्ट करूं तो देखो भाई प्रॉब्लम कहां से शुरू होगी, ध्यान से देखना। आप देख पा रहे हो सर आपने थर्ड टीयर से अभी तक 2 ही क्वेश्चंस लिए, आपने जब इसे मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचा तो आप वो एक बहुत क्रूशियल सा एस्पेक्ट भूल गए जो शायद अब मैं डीएसआई के थ्रू एडजस्ट करना शुरू करूंगा। और डीएसआई से ही क्यों एडजस्ट करूंगा, क्योंकि डीएसआई के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मिनिमाइज करना है। जब मुझे टोटल क्वेश्चंस को मैक्सिमाइज करना था जिसके लिए मैंने इंश्योर किया, तो डीएसआई में मिनिमम कितने होंगे पता करना है। तो आई थिंक वो अब यहीं से तो आएगा। आई होप आप समझ रहे हो क्यों। तो अगर थर्ड टीयर के क्वेश्चंस की बात करूं तो एक और एक दो, तो मिनिमम 8 क्वेश्चंस तो बहुत डालनी पड़ेंगे क्योंकि हर रो में 10 क्वेश्चंस टोटल चाहिए ही चाहिए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये करना ही आपको, यू आर सपोज टू डू इट, मतलब मैंडेटरीली सपोज टू डू इट। सो 8 into 3 मैंने 24 मार्क्स यहाँ कंज्यूम कर लिए आउट ऑफ 50। अब एक और रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी कि 1 और 2, तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस। अगर ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस तो बचे कितने, 7 क्वेश्चंस और डालने पड़ेंगे। तो 7 into 2 आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चंस और डालने पड़ेंगे 14 मार्क्स के। बहुत बढ़िया, ये भी देख लेते हैं। तो क्या मैं अभी तक सब कुछ सिंक में लेकर चल रहा हूँ, सारे डेटा को, कुछ वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा अब मुझे अगर टोटल 50 मार्क्स लाने हैं तो 24 + 14 दैट इज 38। तो आपके पास अभी मेरे ख्याल से 12 मार्क्स का और उसको बच रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो क्यों। तो 12 मार्क्स के लिए अगेन एडजस्ट करने के लिए बहुत सॉर्टेड सा डेटा है कि 12 क्वेश्चन डाल दो 1-1 मार्क के। आपके पास कोई चारा ही नहीं है इसके अलावा करने का, मेरी ऐसी फीलिंग है। और अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो आपके पास डीएसआई में जो क्वेश्चन हो जा रहे हैं वो हो जा रहे हैं 8 और 7 क्लियरली, और ये 12। तो आई थिंक 12 और 8 20 और 7 27। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि 27 क्वेश्चन के साथ हम कहीं से कहीं तक कुछ भी डेटा के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं और हम बहुत सॉर्टेड मैनर में चल पा रहे हैं कि आपको डीएसआई में मिनिमम 27 क्वेश्चन मेंटेन करने होंगे जब आपने अपने डेटा सेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया है। आई होप ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको क्लियर हो रहा है। सो इन दिस केस आई विल से माय आंसर विल बी 27 क्वेश्चंस फ्रॉम द डीआई, मतलब डीएसआई जो भी वो कहना चाह रहे हैं। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दैट। फोर्थ क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अ टेस्ट टेकर नेम्ड जिया। ओके, इसमें भी कुछ कुछ तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो जिया के बारे में क्या क्या दिया है वो मैं लिखना शुरू करता हूँ, है ना। बहुत बढ़िया, काफी कुछ हो रहा है इसी पेज पर। तो जिया स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 10 मिनट्स ऑन ईच डीएसआई क्वेश्चन। तो मैं डेटा अपने साथ लिख लेता हूँ क्योंकि मैं पेज को स्वैप करूंगा। तो जिया की कहानी है कि वो डीएसआई में हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स स्पेंड करती है, तो 10 मिनट्स पर क्वेश्चन, है ना। एंड शी स्पेंड्स 8 मिनट्स ऑन ईच क्यूआर। तो अगर क्यूआर सेक्शन लिया होता सो शी विल बी स्पेंडिंग 8 मिनट्स ऑन ईच क्वेश्चन। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ द टीयर, मतलब आप ये मत बोलना कि सर टीयर 3 के क्वेश्चन तो लेंदी होंगे तो भी वो इतनी लगा रही है। अब ये डेटा दिया है, विल हैव टू एक्सेप्ट दिस डेटा जो भी है, मतलब ये स्टैंडर्ड एक आइडियल केस उन्होंने बना के हमें दे दिया। एंड 4 मिनट्स ऑन ईच एनएलए क्वेश्चन। तो अगर एनएलए का क्वेश्चन होगा सो शी विल बी स्पेंडिंग 4 मिनट्स ऑन ईच एनएलए क्वेश्चन, ठीक है, अच्छी बात है। सो एफटीए ड्यूरेशन इज 150 मिनट्स। उसने बोला है कि जो पेपर को आप टोटल अटेम्प्ट करोगे दैट इज 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स का आपका टेस्ट है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर जिया कैन अचीव। अब मैं ये कैसे सोचूं सर कि जिया का स्कोर मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। तो मैं जिया का स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूं। अब आप ये सोचो कि जिया का स्कोर अगर मैक्सिमाइज करना है तो जिया के स्कोर को मैक्सिमाइजेशन के लिए मेरे पास स्कोप क्या है, मतलब क्या तरीका हो सकता है कि मैं जिया के स्कोर को मैक्सिमाइज करूं। आप ऐसे समझो, जिया के स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि उसका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एरिया समझना कैसे पॉसिबल है सर। स्ट्रॉन्ग एरिया समझना है, निकालना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं। आप ये देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि वो कहाँ कहाँ उसके पास स्कोर करने का स्कोप है। कोई इंसान बेवकूफ होगा जो एक क्वेश्चन पे 10 मिनट बिताएगा। अगर उसको ऑलरेडी किसी क्वेश्चन पे 4 मिनट बिताने पे मार्क्स मिल रहे हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन को 4 मिनट में कर रहा है, उसी को एक ही क्वेश्चन को करने में किसी सेक्शन में 8 मिनट लग रहे हैं और किसी सेक्शन में एक ही क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लग रहे हैं। सो आइडियली मैं तो अपना टाइम एनएलए सेक्शन पे इन्वेस्ट करूंगा। हालांकि ये थॉट या ये आइडिया बहुत ज्यादा सही नहीं है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मुझे मार्क्स कितने मिल रहे हैं, मतलब आउटपुट मेरा क्या है, रिटर्न क्या है। तो अगर मैं ये समझना शुरू करूं तो मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं इस पर काम करता हूं। मैं ये सोचना शुरू करता हूं कि सर ओवरऑल अगर मैं सेक्शन वाइज देखूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी ये दोनों टेबल्स को तो आप भूल जाओ। आप ऐसे समझो आपके पास 4 या 3 बेसिकली, यहाँ पे मैं एक अलग डेटा ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास क्यूआर है, मेरे पास
दूसरा सेक्शन है एनएलए, और तीसरा सेक्शन कौन सा है भाई, डीएसआई। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं एक बहुत क्रूशियल सी बात आपसे कहने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास टीयर है ना, 1 मार्क का टीयर, 2 मार्क्स का टीयर और 3 मार्क्स का टीयर। बड़े गौर से सुनिएगा अब आप इस बात को, यहीं से आपको सारा कंक्लूजन समझ आना शुरू हो जाएगा। समझो, अगर मैं एनएलए से 3 मार्क का एक क्वेश्चन उठाऊं, अगर मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूं एनएलए से 3 मार्क का, तो मैं उसमें अगर टाइम इन्वेस्ट करूं 4 मिनट, क्योंकि ये श्योर है, ये डेटा फिक्स्ड है कि जिया जो है वो 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देती है, मतलब एक्यूरेटली करेगी, हम मान के चल रहे हैं। तो 4 मिनट में अगर एक क्वेश्चन खत्म कर दे रही है तो एनएलए का 3 मार्क वो उठा लेगी 4 ही मिनट में बस। पर वहीं अगर मैं क्यूआर में करने गया तो 3 मार्क उठाने में उसको 8 मिनट लगेंगे, और अगर डीएसआई में करने गया तो वही 3 मार्क्स लेने में उसको 10 मिनट लगेंगे। तो एक कॉमन सेंस से मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं मार्क्स पर मिनट पर काम करना शुरू करूं, मार्क्स पर मिनट एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस करके कि मार्क्स लाने में पर मिनट मुझे कितना टाइम लग रहा है, तो वो हर एक ब्लॉक के लिए अलग हो सकता है। तो उसको हम वर्कआउट करना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर मैं समझूं कि एनएलए में अगर मुझे समझना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत लॉजिकल सा अप्रोच है। एनएलए को ही क्यों टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी ऐसी फीलिंग है कि एनएलए आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, आपको फील भी हो रहा होगा। पर जरूरी नहीं है कि एनएलए और क्यूआर आपको दोनों, मतलब क्यूआर ही आपको कम दे और डीएसआई सबसे कम दे, हो सकता है चीजें वेरी करे, और इसलिए नई यूनिट इंट्रोड्यूस की है। क्योंकि ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया नहीं है 4, 8, 10, क्योंकि नंबर्स भी वेरी कर रहे हैं, मार्क्स 3, 2, 1, तो चीजें चेंज हो गई। आप समझना कैसे, देखो, अगर एनएलए का मैंने एक क्वेश्चन उठाया 3 मार्क्स का, जिसको करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो मुझे 1 मिनट में कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो मैं सोचना शुरू करता हूँ 3 क्वेश्चन वाले मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो मैं बोलूंगा सर, आई होप आप समझ पा रहे हो, 3 मार्क्स पर 4 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मार्क्स पर 4 मिनट। और 3/4 को अगर मैं सीधे सीधे लिखूं तो मैं 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, मैंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या हो गई है कि हमारा पूरा डेटा चला गया। ठीक है, पूरा डेटा फिर से बना लेंगे। मैं अभी यहाँ पर जो काम करना शुरू करता हूँ वो ये कि जिया वाले डेटा को फिर से वर्कआउट करना शुरू करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझेंगे जो होगा। आई थिंक अब हम यही लिख लेते हैं, हमारे पास स्कोप तो है, तो मैं यहीं लिखता हूँ। जिया का डेटा क्या है, जिया का डेटा आई थिंक दिया हुआ है, ये है ना। तो मैं अपनी टेबल ही क्रिएट करना शुरू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, टेबल क्या बोलती है वो समझते हैं। टेबल में मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एनएलए, क्यूआर और इसके अलावा क्या, डीएसआई। ठीक है ना। तो हम पुराना डेटा शायद हो सकता है मैं रेफर करना पड़े, पर अब समझ लेंगे कैसी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, मुझे बैक करना है, तो बैक करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्लाइड शो शुड बी, हाँ ठीक है। आई थिंक वापस आते हैं, एनएलए, डीएसआई और क्यूआर। ये आपका एनएलए, ये क्यूआर, और ये आपका डीएसआई, और ये टीयर वाइज मार्क्स, है ना। तो ये आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन, ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन, ये 3 मार्क। तो जो यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की थी वो ये इंट्रोड्यूस की थी कि मार्क्स पर मिनट क्या होंगे। तो मैंने एनएलए को टारगेट किया था, क्योंकि हमने जो देखा था वो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। हमारे पास जो डेटा काम का है वो ये है कि जिया 10 मिनट्स ऑन ईच डीएसआई, 8 मिनट्स ऑन ईच क्यूआर एंड 4 मिनट्स ऑन ईच एनएलए। आई होप आपको याद आ रहा है डेटा। तो अगर मैं यहीं से शुरू करूँ समझना, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, इसको मैं 3 लिखूंगा, है ना। तो ये हो जा रहा है आपका 3। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। 10 मिनट्स ऑन ईच, सॉरी 4 मिनट्स ऑन ईच एनएलए। तो एनएलए से आप कितने फेच करोगे वो समझते हैं। आप ध्यान से देखना, गौर से देखिएगा। मैं 3 मार्क्स ला रहा हूं 4 मिनट में, मैं 3 मार्क्स ला रहा हूं 4 मिनट में, तो आई से 3/4, और 3/4 को हम क्या समझते हैं, 0.75, मतलब 0.75 मार्क्स में ले लूंगा 1 मिनट में, अगर मैंने एनएलए का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 3 मार्क्स वाला। आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ। आई इंटेंशन आप समझने की कोशिश, और ये बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, सेम लॉजिक अगर मैं क्यूआर के और डीएसआई पे लगाऊं, तो आई होप आपको पता है मार्क्स, आपको टाइमिंग पता है। मैं लिख लेता हूं यहाँ, डीएसआई के लिए मैं कितना टाइम लेता हूं, डीएसआई के लिए मैं लेता हूं 10 मिनट, तो मैं यहाँ लिख देता हूं 10 मिनट हर क्वेश्चन के लिए। क्यूआर के लिए कितना लेता हूं, क्यूआर के लिए आई टेक 8 मिनट्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 मिनट्स, ये हो जा रहा है आपका 8, आई होप इट्स विजिबल। और एनएलए के लिए कितना, 4 मिनट्स, तो ये हो गया आपका 4 मिनट्स। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, आई होप अब आपको अप्रोच समझ आ गई। यहाँ मैं लिखूंगा बेसिकली, यहाँ मैंने लिखा था 3/4, यहाँ मैं लिखूंगा 3/8। 3/8 आप अगर जानते हैं तो 1/8 आपका होता है बेसिकली, 1/8 का ट्रिपल आपको करना है। 1/8 का अगर आपने ट्रिपल किया, लेकिन डेसिमल याद रखना, तो डेसिमल के साथ अगर आप आगे बढ़े तो हो जाएगा 0.375, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, मैं राउंड ऑफ करके 37 तक ही ले आता हूँ। अच्छा, डीएसआई में अगर मैंने 3/10 किया, तो आई होप मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी 0.3 क्लियरली।
अब अगर मैं ऊपर वाले सेकंड रो की बात करूँ, ध्यान से देखना, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा अभी एनएलए के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे 0.7। आई होप आपको समझ आ रहा है कि ब्लॉग बनाना क्यों जरूरी है। अब अगर मैं समझू 2 मार्क क्वेश्चन एनएलए के, तो एनएलए के 2 मार्क वाले क्वेश्चन से मुझे क्या मिलेगा, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। एनएलए के अगर मैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करूँ तो 4 मिनट ले रहा हूँ 2 मार्क के लिए, तो मैं आई होप आप समझ पा रहे हो 2/4 यानी बेसिकली 0.5 यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। क्यूआर में वो हो जाएगा 2/8 यानी 1/4 यानी 0.25। अगर आप इसी को आगे बढ़ाएं, सो डीएसआई में हो जाएगा 2/10 यानी 1/5 यानी 0.2। आई होप दिस पार्ट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। अगर एनएलए में मैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन की बात करूं, सो इट इज 1/4 यानी 0.25। नाउ क्यूआर की अगर मैं बात करूं, सो इट इज 1/8, अगेन 1/8 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज 0.125 यानी मैं 0.12 ही ले लूं तो काफी होगा। और डीएसआई की बात करूं तो 1/10 विच इज 0.1। ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब मैं इसमें अपनी मार्किंग स्कीम समझता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट क्या होगा अटेम्प्ट करना, मतलब मैं किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को फेच करना शुरू करूंगा, है ना। एक और कंडीशन है कि आपके पास टोटल टाइम जो अलाउड है वो 150 मिनट्स ही है, मतलब 150 को आप क्रॉस कर ही नहीं सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो मैं कैसे शुरू करूंगा, मैं शुरू करता हूं कहां से, मेरे लिए जो प्रेफरेबल होगा वो ये होगा 0.75। आई थिंक ये सबसे अच्छा जोन है जो हमें हाईएस्ट रिटर्न देगा। 0.75 के बाद आई विल से कि मैं अभी भी क्यूआर में नहीं जाऊंगा, मैं अभी भी एनएलए के ये वाले क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मेरे पास एक अच्छा स्कोप है रिटर्न लाने का, एक अच्छे मार्क्स लाने का। और इसी लॉजिक से अगर मैं आगे बढ़ूं, तो मैं आगे बढ़ते बढ़ते अब मैं देख पा रहा हूं कि मुझे क्यूआर के, अच्छा इसको मैं 2 स्टार दे देता हूं, ये मेरा सेकंड ऑर्डर होगा। फिर मेरा जो बेस्ट रिटर्न मुझे मिलेगा वो मुझे क्यूआर के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से मिलेगा 0.37। इसके बाद अगेन इट्स टोटली योर चॉइस, या तो आप क्यूआर के वाले क्वेश्चन कर लीजिए 2 मार्क्स वाले, या एनएलए के 1 मार्क वाले कर लीजिए। यहाँ से दोनों से आपको सेम रिटर्न मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं जाऊंगा डीएसआई के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि 0.5 के बाद आई थिंक 0.3। आई होप मैं कुछ और मिस तो नहीं कर रहा हूँ, सही है। तो दिस शुड बी माय 4th प्रेफरेंस, है ना। इस तरीके से हमें दिख ही रहा है बराबर पूरा सिनेरियो, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ जाएंगे। पर मुझे ये समझना है कि अब क्वेश्चंस का ओवरऑल कंसिडरेशन मुझे क्या रखना चाहिए। तो क्वेश्चंस के लिए अगर मैं समझूं, तो आई होप अब मुझे क्वेश्चंस का मैक्सिमाइजेशन समझना है। तो क्वेश्चंस को भी तो मैं इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा, तो क्वेश्चंस को कैसे मैं एडजस्ट करना शुरू करूंगा वो समझते हैं। देखो भाई, अगेन वो टेबल जो हमने क्रिएट की थी वो हमारे काम की थी, वो डेटा आई हैव लॉस्ट, तो मुझे वापस चीजें वर्कआउट करना शुरू करनी पड़ेगी। देखो हम समझ सकते हैं, अब मुश्किल नहीं है क्योंकि अब आपके लिए इजी पड़ जाएगा चीजें। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एनएलए को अगर मैंने स्टार्ट किया, तो क्या कह रहा है, एनएलए से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रखने चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस्ट पार्ट है। तो मैं एनएलए के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता हूँ। और आई थिंक मुझे याद है जितना डेटा हमने रखा था, ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर आप रख लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। तो आई थिंक मैं एनएलए से कितने क्वेश्चन रख लेता हूँ, मिनिमम 50। तो वो टेबल मेरे पास होनी चाहिए, और वो टेबल अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर हम बना लेते हैं। अब हमने अपना डेटा क्रिएट करना शुरू किया है ना। तो यहीं पर हम क्रिएट करते हैं, ये आपका पूरा डेटा है। अगेन ये टेबल मुझे लगेगी क्योंकि इसके बिना बात बननी है नहीं। तो ये आपका एनएलए, ये आपका क्यूआर, और ये आपका डीएसआई। देखिएगा ध्यान, ये सेट थोड़ा लंबा है, लेंदी है कैलकुलेशन के सेंस में भी, और ये सारी बातों को ध्यान रखने के सेंस में भी। पर हालांकि हमारा जो पुराना डेटा था वही हमारे काम आ सकता है, बस अप्रोच शायद वही काम आ सकती है, थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेफरेंस देखना है कि कब मैं मैक्सिमाइजेशन अचीव कर पा रहा हूँ। तो 0.75 यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मुझे मैक्सिमम रखने। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर मैंने एनएलए के मैक्सिमाइज किए, तो मैं कितने रख पा रहा था, 15 क्वेश्चन। आई होप आपको याद आ रहा है। अब एक और बात याद रखनी है कि अगर मैंने 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो मैं कितना टाइम कंज्यूम कर जाऊंगा। मैं एनएलए के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 4 मिनट लेता हूं, तो इन 15 क्वेश्चंस को करने में मुझे 15 इंटू 4 60 मिनट्स लग जाने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। 15 इंटू 4 में ऑलरेडी 60 मिनट्स ले चुका हूं, तो अभी 60 मिनट्स मेरे कंज्यूम हो चुके हैं, और 15 इंटू 4 में 60 मार्क्स अटेन कर चुका हूं। आई होप ये बात आपको समझ आई क्यों और कैसे। तो मुझे दोनों ट्रैक करना है, टोटल टाइम 150 तक जाना है, और मार्क्स मैक्सिमाइज करते चलना है। मार्क्स मैक्सिमाइजेशन का प्रायोरिटी ऑर्डर आपको समझ आ चुका है, और टाइमर का हमें ध्यान रखना है। अब मैं किसके पास जाऊंगा, मैं एनएलए के ये वाले क्वेश्चंस मैक्सिमाइज करूंगा। तो इन्हें मैक्सिमाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम कितने रख सकता हूँ उस पर विचार करते हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रखने का स्कोप खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने 15 क्वेश्चन यहाँ कंज्यूम कर लिए। तो 15 इंटू 3, आई होप आप समझ रहे हो, यहाँ पे आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेटा एग्जॉस्ट कर दिया है, क्योंकि 15 इंटू 3 आप ऑलरेडी 45 मार्क्स कंज्यूम कर चुके हो टोटल
50 में से। तो आपके पास ज़्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि हर ब्लॉक में एक तो होनी चाहिए। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको याद आ रहा होगा, इसमें मैक्सिमम 2 into 2, यानी मैं 4 मार्क्स का ही स्कोप रख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं मैक्सिमम 1 into 1 मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। आपको याद आ रहा होगा, तभी जाकर 45 + 4 49 + 1 49 + 1 50 मार्क्स में टोटल मेंटेन कर पाऊंगा। आई होप आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे सेटअप याद हैं। तो अगला जो सिनेरियो होगा वो ये वापस कि मैं एनएलए में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 4 मिनट लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 2 into 4 अगेन मैंने 8 मिनट और कंज्यूम कर लिए। लेकिन इस वजह से मुझे क्या फायदा हुआ? आई थिंक ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन था, तो मुझे 4 मार्क और मिल गए। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो मेरे पास, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, 2 क्वेश्चन किए 2 मार्क्स के, तो 4 मार्क्स और मिल गए। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। नाउ फर्दर आगे बढ़ते। अब क्या सर, अब आपका प्रायोरिटी में आना चाहिए क्यूआर का 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो अगेन मुझे याद है कि सर यहाँ भी आप चाहो तो आप तो इसको भी 15 क्वेश्चन ही ले लो। हमको कॉन्फ़िगरेशन याद है, हम इनको स्वैप करके चीज़ें कर पा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने वापस 15 क्वेश्चंस ले लिए हैं 3 मार्क्स वाले। इससे मैं 45 मार्क्स ला पा रहा था। आई होप आपको याद होगा। उस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर हमने अरेंजमेंट किया था, पर दैट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। तो मैं ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कर पाऊंगा कि नहीं। तो पहले तो समझते हैं, 60 + 8, आई थिंक 68 मिनट्स मेरे जा चुके हैं। मेरे पास टोटल कितने मिनट्स अलाउड थे? मेरे पास टोटल 150 मिनट्स का ही स्कोप था। तो 150 में से अगर मैं 60 और 8, 68 मिनट्स कंज्यूम कर चुका हूँ, तो 68 + 2 दैट इज 70। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और 70 प्लस अगर आप देखोगे 30 और 50 80, यानी 82 मिनट्स और मेरे पास बेसिकली बाकी हैं। आई होप आप देख पा रहे हो। अब इन 82 मिनट्स में मैं अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना आप, बहुत ध्यान से। 82 मिनट्स आपके पास बचे हैं, और आपके पास हर क्वेश्चन को करने के लिए कितने लग रहा है? 8 मिनट। तो जो मोटा मोटा हिसाब मुझे लग रहा है वो ये कि इन 82 मिनट्स में से मैं फिलहाल अभी एक क्वेश्चन को अगर 8 मिनट दे रहा हूँ, तो मैं 10 क्वेश्चन ही यूज कर पाऊंगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन करने में 8 मिनट, तो मैं टोटल 10 क्वेश्चन कर पाऊंगा। सो आई विल बी हैविंग 80 मिनट्स और 82 मिनट्स ओवरऑल इफेक्टिवली यूटिलाइज। तो आई थिंक 10 क्वेश्चंस 8 मिनट्स के, यानी 80 मिनट्स यहाँ चले जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो ये 15 के 15 तो मैं करने से रहा, इसमें से 10 क्वेश्चन उठाऊंगा, 10 into 3, तो मैं 30 नंबर और ला पाऊंगा। आई होप आप मेरी बात बहुत क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हो। अब क्या बचा सर? आई थिंक इसके अलावा कोई चांस है नहीं, क्योंकि 2 मिनट में आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपके पास करने के लिए अब 4 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट का ही बैंडविड्थ होता था, बस 2 मिनट रहे। तो आई थिंक इसमें अब करने का कुछ स्कोप आपके पास है नहीं। तो वो पूछ रहा था जिया कितना मैक्सिमाइज स्कोर अटेन कर सकती है। तो मेरे ख्याल से ये उसका स्कोर मैक्सिमम होगा, जो कि कितना होगा? 15 into 4 60, 2 into 2 4 और 10 into 3 30। तो आई थिंक ये हमारे पास एक मैक्सिमम स्कोर आ सकता है। 15 into 4 आई थिंक 60, 10 into 3 30 और 2 into 2 4। आई थिंक मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। सो आंसर शुड बी 94। एक बार देख लेते हैं। 94 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, मतलब मैंने कहीं तो कोई मिस्टेक की है। मैं 94 मार्क्स क्यों दिलवा पा रहा हूँ जिया कि अगर 94 मार्क्स शी कुड नॉट अटेन, तो 94 मार्क्स में कहीं तो हमने कुछ गड़बड़ की है। अगर इसे मैं समझूं तो कहाँ पर चीज़ें जा रही हैं वो हम देखना शुरू करते हैं दोबारा। अगर यहाँ पर मैं समझूं तो आई थिंक एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है जो मैं फील कर पा रहा हूँ करेक्शन में, ये कि मैंने यहाँ 15 into 4 लिख दिया है। शायद वो कुछ तो मैंने टाइपिंग एरर किया है, सिली सा। ये जो मार्क्स पर मिनट है उसके, दिस शुड हैव बीन 3, मतलब मार्क्स पर मिनट नहीं, टोटल मार्क्स जो अटेंड कर रहा है वो 15 क्वेश्चन उसने किए हैं 3 मार्क्स के। सो दिस शुड हैव बीन 45। तो जो छोटा सा करेक्शन कैलकुलेशन में आप करेंगे वो ये होगा, दैट शुड बी, आई होप इट्स प्रॉपर्ली विजिबल, 45 प्लस 10 into 3 30 और 2 into 2 4। सो आंसर शुड बी 45 plus 30, दैट इज आई थिंक 75 प्लस 4 शुड बी 79। सो जिया का जो मैक्सिमम स्कोर होगा दैट शुड बी 79, ऑप्शन ए। आई होप इट इज वेरी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड बाय एवरीवन। अब एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसमें क्या बोला जा रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। उस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डेटा शायद हमारे काम आ जाए। अरिन क्या करता है? अरिन का भी अपना एक डेटा है, 5 मिनट डीएसआई, 4 मिनट क्यूआर और 3 मिनट एनएलए। ठीक है, अब इस बार थोड़ा डेटा चेंज हुआ है, तो मेरे पास जिया वाला डेटा तो कुछ काम का नहीं है। सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर अरिन टू स्कोर एग्जैक्टली 100 मार्क्स? तो अरिन से कम 100 मार्क्स तो मुझे स्कोर करवाने हैं, अदर एग्जैक्टली 100 स्कोर करवाना है। और मिनिमम टाइम कितना लगेगा कि कम से कम इतने टाइम में अरिन 100 कैसे ला सकता है, वो हमें सोचना है। तो मिनिमम टाइम हमें सोचना है। तो आई थिंक ये डेटा मेरे कुछ भी काम करनी है, तो पूरा डेटा हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से काम शुरू करता हूँ अपने डेटा पे। तो इस बार अरिन का सिनेरियो क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। अरिन के सिनेरियो में हमारे पास चीजें क्या दी गई है वो देखो ध्यान से।
देखो सेम वही सेट आपके NLA, आपका QR और आपका DSI, ये तीन आपके सेट्स हैं और इसके अलावा आपके पास टीयर्स हैं यानी मार्क्स हैं, तो 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चंस। सो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं और ये 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं। अब हुआ क्या वो समझना हम शुरू करते हैं। देखिएगा भाई, अरिन ने 5 मिनट लगा रहा है DSI क्वेश्चन पे, तो अरिन का हिसाब ये बैठता है कि DSI में ही इन्वेस्ट 5 मिनट्स पर क्वेश्चन। और क्या करता है वो 4 मिनट्स पर QR क्वेश्चन, ठीक है, तो 4 मिनट लेता है वो QR क्वेश्चन करने में। एंड ही टेक्स 3 मिनट्स पर NLA क्वेश्चन, तो 3 मिनट्स वो लेता है पर NLA क्वेश्चन में। तो अगेन आपको समझ आ रहा होगा, मुझे ये तो सोचना ही पड़ेगा कि मार्क्स पर मिनट इस बार क्या है, अगेन वो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर वो ये बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम टाइम मिनट्स, तो ये निकालना हमें पड़ेगा। तो अगेन मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। अगर मैं लिखूँ तो आई होप आपको पता है, अब हमें मार्क्स पर मिनट निकालना है, तो 3/3 1, 3/4 दैट इज 0.75, 3/5 हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं, दैट शुड बी आपका 1/5 इज 0.2, सो 3/5 शुड बी 0.6। I hope it's properly visible and understood. 2/3 should be 0.66, 2/4 should be 1/2 यानी 0.5 and 2/5 1/5 को 0.2, तो 2/5 should be 0.4। और अगर फर्दर निकालना है तो 1/3 should be 0.33, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, 33 लिख लेता हूँ। 1/4 should be 0.25 और 1/5 should be 0.20 या 2 जो भी आप लिखना चाहें। अब मुझे अरिन का कम से कम टाइम है एक अच्छा 100 मार्क्स का स्कोर लाने से। कम से कम टाइम का मतलब क्या है? कम से कम टाइम का मतलब वही है कि आप रिटर्न समझ लो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है। तो अगेन यहाँ पे मैं समझूँ तो आप पहले तो ये वाला मैक्सिमाइज कर लेना सर, फिर आप इसके पास चले जाना 0.75, ये कितना था 3/5, तो मेरे पास NLA के ये वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा स्कोप होना चाहिए। फिर इसके बाद 0.66 के बाद आई थिंक ये हो जाएगा। आई होप ऑर्डर हमारे सामने लिखा हुआ है, तो हम करना शुरू ही करते हैं। अब हमें काफ़ी कुछ डेटा तो याद है कि हमें चीज़ें कैसे सोचनी है। तो देखो भाई, मैं 1 मार्क के NLA के क्वेश्चन उठा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अरिन भी NLA को निपटा देता है बहुत ईजीली। तो मैं 1 मार्क बोल रहा हूँ, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठा रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठा सकता हूँ 15, तो मैंने उठाए 15। तो 15 क्वेश्चन जब 3 मार्क्स वाले उठाए, तो 15 क्वेश्चन अगर मैंने उठाए 3 मार्क्स वाले, है ना, तो मैंने कितना स्कोर किया, मैं थोड़ा क्लियरली लिख रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। मैं 45 मार्क्स तो ले पा रहा हूँ। मुझे कहाँ गाड़ी पहुँचानी है? 100 मार्क्स पे। लेकिन इस वजह से टाइम कितना लग गया वो भी टैली करते चलते हैं। तो NLA के एक क्वेश्चन को करने में मुझे लगता है 3 मिनट, तो 15 क्वेश्चन को करने में लगेंगे मुझे 15 × 3 45 मिनट्स। तो अभी मैं 45 मिनट्स तो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका हूँ। आई होप कोई डाउट नहीं है ना। अब कहानी 100 मार्क्स तक लेके जानी है, तो 45 के बाद अब मैं मेरे पास 55 मार्क्स का स्कोप है, वो मैं कैसे अरेंज करता हूँ वो समझते हैं। देखो यहाँ पे आई होप आपको गणित याद है कि अगर मैं इसको 15 कर चुका हूँ तो ये 2 और 1 वाली डेटा बैठता है, आपको याद होगा। तो अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो ये 2 क्वेश्चन NLA के मैंने अटेम्प्ट किए 2 मार्क्स के, तो मेरे पास अब आ गए कितने 2 × 2 4 मार्क्स। लेकिन अब मैंने कितना टाइम ले लिया, अभी उन्हें 3-3 मिनट और ले लिए, मतलब मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन के 3 मिनट, तो 2 क्वेश्चन के 6 मिनट और ले लिए, तो अभी 6 मिनट्स और मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ, है ना। बढ़िया। अब क्या, अब आई थिंक मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा, रादर मुझे इससे पहले यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि 0.75 से मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता था। तो ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें एनीवे लगेगी ही, पर इसको मैं बाद में यूज़ करूंगा। आई शुड नॉट हैव गॉन फॉर दिस, मुझे ये करना चाहिए था। आई मिस्ड इट, ध्यान मेरा यहाँ नहीं गया। पर अगर मैं यहाँ देखता हूँ चीज़ें, तो मुझे क्या मिलती है वो सबसे 0.75। अगेन 0.75 के पास भी अगर मैं जाऊँ तो आई थिंक मैक्सिमाइज कर लो, क्योंकि इसके पास भी 15 क्वेश्चन लाने का स्कोप है। तो अगर मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन किए 3 मार्क्स के, तो अगेन मैं 45 मार्क्स तो ला ही पाऊंगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं अभी 90 मार्क्स पे टोटल पहुंच चुका हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो 100 के काफी क्लोज, और ये बहुत अच्छा मार्क हमें मिल रहा है। पर अगर मैंने ये किया तो एक क्वेश्चन के 4 मिनट लगते हैं, तो मैंने 60 मिनट्स और कंज्यूम कर लिए, तो ये मेरा 60 मिनट्स के पास डेटा पहुंच चुका है। आई होप आप समझ पा रहे हो, 60 + 45 तो हम ला ही पा रहे हैं। अब मुझे लाना है 10 नंबर और। अब मैं 10 नंबर कहाँ से लाऊंगा, तो आई थिंक 10 नंबर लाने से पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं पहले ये वाला गणित बिठाता हूँ कि ये मार्क मैं कहाँ से लाऊंगा। आई थिंक इसके बाद मुझे यहीं शिफ्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमने अभी टैली किया था कि 2 क्वेश्चन ही कर पाऊंगा, कितने 2 मार्क्स के, तो मेरे पास 4 मार्क्स और आ जाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। तो अगर मैंने 4 मार्क्स और लिया है, तो अब मैं 94 मार्क्स पे पहुंच गया हूँ। पर मैंने इस सेक्शन के 3 मिनट वाले क्वेश्चंस किए हैं, तो एक क्वेश्चन के 3 मिनट, तो 2 क्वेश्चंस के 6 मिनट, तो आई थिंक 6 मिनट और मैं कंज्यूम कर चुका हूँ। नाउ आई थिंक अब मेरे पास डेटा बहुत सॉर्टेड है। 0.66 के बाद आई प्रेफर 0.6, है ना।
आई होप मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब हमारे पास 94 मार्क्स आ चुके हैं, तो आई थिंक 6 मार्क और डालें, और इससे मुझे आते हुए दिख रहे हैं 6 मार्क्स, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो मैं यहाँ से 2 क्वेश्चंस और उठा लेता हूँ, है ना। तो 2 क्वेश्चंस उठाए 3 मार्क्स के, तो 6 मार्क आ जाएंगे। 100 एग्जैक्टली हम टच कर पा रहे हैं। पर जब इन 2 क्वेश्चंस को किया तो टाइम कितना लगना है, आई होप आप देख पा रहे हो। इस कैटेगरी में मुझे 5 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को करने में, तो 2 क्वेश्चन को करने में मुझे 10 मिनट और फर्दर लगने वाले हैं। अगर मैं समझूं तो 60 प्लस 10 आपका 70, 70 प्लस 45 अगर आपने पकड़ा तो आई थिंक 115, 115 प्लस 6 शुड बी 121 के आसपास कुछ होना चाहिए, यानी आप मार्क कर सकते हो उसमें ऑप्शन सी को करेक्टली, अगर बिना किसी डाउट या कंफ्यूजन के मैं इस डेटा सेट और क्वेश्चन को खत्म करना चाहूँ तो आई होप पूरा डेटा पूरा सेट आपको क्लियर है, कैसे सोचनी है चीजें, कैसे करना है बिना किसी कंफ्यूजन या हेजिटेशन के। काफी मतलब चीजों का ध्यान रख के क्वेश्चन या डेटा सेट होगा आपसे, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब आपको एक एक करके सब कुछ ही करते जाना है। तो आई होप सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। So let's get started with the second set. It says there are 3-6 trending YouTube creators. So they are TR, SSH, SSP, let's say, GG, EV, and DD. Now, so there are 3 friends, DVT, I'll say Dev, Karun, and Tanu. They have made some predictions about top 4 spots. Now what happens is they have made their own predictions. So they have predicted few things about them, and let's see what all we are told. So we have Dev, Karan, and Tanu, right? Now, first of all, it says none of the creators ranked in the same trending spot as predicted by Dev. सो देव की रैंकिंग्स जो है वो गलत है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं आ सकते अगर ये चारों आए होते तो। पर ये भी बोला गया है दैट ही प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली 2 ऑफ द 4 ही प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली एक्चुअली मेड इट टू द टॉप 4। सो देव के 2 प्रेडिक्शन सही हैं, 2 प्रेडिक्शन सही है माइंड यू, और रैंक्स जो है उसकी एक भी सही नहीं है, रैंक्स जो है उसकी 0 सही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। What about next? Exactly 2 of the creators appeared in the same trending positions as predicted by Karan. तो करण की 2 रैंक्स जो हैं वो सही हैं, और but one of his predicted creators did not trend at all. मतलब उसके जो predictions हैं वो 3 सही हैं out of 4. आप समझ रहे हैं? Next, exactly 2 of the creators predicted by Tanu managed to train the top 4. तो तनु के भी 2 predictions सही हैं, but only one creator finished in the exact trending spot. तो रैंकिंग बस तनु की एक ही सही रही है। आई होप ये बात आप सभी को समझ आई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? इसके अलावा मुझे जो बताया गया है, बोला गया, उसको हम समझ लें कि रैंक वाइज अगर मैं चीजें देखूं और प्रिडिक्शन वाइज चीजें देखूं तो 2 चीजें हैं, दोनों का हमें ओवरऑल देखना है डेटा। तो मैं शुरू करता हूं कहां से, यहां से कि देव ने क्या क्या बोला। सो देव ने बोला कि टेक्नो रवि आ सकता है, सिल्वर शेख आ सकता है, स्टार स्पार्क्स आ सकता है, और डिवाइन डिश आ सकता है। ठीक है। करुण के अकॉर्डिंग सिल्वर शेख आ सकता है, ईवी आ सकता है, टीआर आ सकता है, और जीजी आ सकता है। ठीक है। तनु के अकॉर्डिंग डीडीआई है, स्टार स्पार्क्स आया है, सिल्वर शेक आया है, और जीजी आई है। ठीक है, बढ़िया। अब हम समझते हैं कि चीज़ें कैसे कंक्लूड की जाएं। तो चीज़ों के कंक्लूजन को लेकर हम हमारी टेबल को बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हमें बोला गया है, दिखाया गया है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कहां से? मैं स्टार्ट करता हूं अपने करण के प्रेडिक्शन से। करण क्या बोल रहा है आप पढ़ो। करण ने जो बोला है वो ये कि करण के 3 प्रेडिक्शंस हमारे सही हैं। आपको नहीं लगता इसका ये मतलब हो सकता है कि करण का सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन गलत है? अब समझो, करण ने अगर 3 प्रेडिक्शन सही दिए हैं आउट ऑफ 6, मतलब उसका एक ही प्रेडिक्शन गलत है, मतलब उसने जो 2 प्रेडिक्शंस नहीं दिए उनमें से कोई एक तो सही रहा ही होगा। मतलब मैं पहला कंक्लूजन दूंगा कि एसएसपी और डीडी में से कोई एक तो डेफिनेटली सिलेक्ट हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। क्यों? सिमिलरली मेरे पास एक और बहुत खूबसूरत सी बात है जो मैं नोटिस ही नहीं कर रहा हूं कि जब देव ने 2 प्रेडिक्शन सही दिए तो 2 गलत दिए,
तो आउट ऑफ 6 अगर दो कोई सही दिए और दो गलत दिए तो जो बच गए दो हैं वो तो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि 4 तो सेलेक्ट करने ही थे। तो देव ने जो दो नहीं बोले हैं यानी जीजी और ईवी, ये तो साहब सेलेक्ट हुए ही होंगे। आप समझ रहे हो कि सेम लॉजिक तनु के लिए भी मैं फॉलो कर सकता हूं कि तनु ने 4 प्रेडिक्शंस दिए थे जिसमें से कोई 2 ही सही हैं तो कोई 2 गलत हैं। मतलब जो उसने 2 प्रिडिक्ट नहीं किए वो तो सिलेक्ट हुए ही होंगे, क्योंकि 4 लोग सेलेक्ट हुए ओवरऑल। तो तनु के अकॉर्डिंग टीआर और ईवी सिलेक्ट होनी चाहिए। ईवी हमने ऑलरेडी ले लिया तो टीआर और आएगा। तो मेरे पास ये ओवरऑल 4 प्रिडिक्शंस आए, पर एक प्रिडिक्शन में अभी भी गड़बड़ है। एसएसपी और डीडी को लेके मैं कॉल नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, अगर अब मैं रैंक वाइज बात करना शुरू करूं तो रैंकिंग को लेके मेरा क्या ओपिनियन होगा वो थोड़ा मैं समझना शुरू करता हूं। देखो, मैं शुरू ये करता हूं कि देव ने टीआर को लेके क्या बोला। देव ने टीआर को लेके बोला कि टीआर की रैंक फर्स्ट नहीं हो सकती, तो मैं ऐसा लिखता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रैंक्स, है ना। तो फर्स्ट पे टीआर नहीं आ सकता, ये मुझे पता है। मतलब टीआर की रैंक 1 तो नहीं हो सकती। अगर टीआर की रैंक 1 नहीं हो सकती तो टीआर के पास क्या चॉइस है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ हो सकता है। अच्छा, एक छोटा सा ओपिनियन में मान लूं कि करण ने कहा था कि टीआर थर्ड होगा। देखो करण के कौन कौन से प्रेडिक्शन सही निकले। करण ने ईवी टीआर जीजी, ये कुछ मिल रहा है क्या, आई थिंक मुझे जीजी भी मिल रहा है, टीआर भी मिल रहा है, ईवी भी मिल रहा है। तो करण ने एसएसएस प्रिडिक्ट किया था जो कि गलत है। ठीक है, तो करण के इन 3 प्रिडिक्शंस में से कितनी रैंक सही है। अब देखो करण की 2 रैंक सही है ना। अब अगर करण की 2 रैंक सही है तो वो या तो ईवी टीआर या टीआर जीजी या ईवी जीजी हो सकती है। आप समझना, मैं तीनों आपको लिख के बताता हूँ कि तीनों में से आपके लिए क्या मोस्ट सुटेबल होगा, आपको खुद समझ आ जाएगा। मैं तीनों सिलेक्शंस हुए हैं, यानी ईवी टीआर और जीजी तीनों सिलेक्शन हुए। अब आप सोचने की कोशिश करो, ईवी सेकंड पे अगर मैं मान लेता हूं कि ईवी और टीआर सही है, मैं कहता हूं ईवी आया सेकंड पे और टीआर आया थर्ड पे, तो इस लॉजिक से जीजी फोर्थ पे नहीं आ सकती। तो फिर जीजी को कहाँ जाना पड़ेगा, फर्स्ट पे। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जीजी फर्स्ट पे चलेगी, क्योंकि जीजी फोर्थ पे नहीं जा रही, क्योंकि ये गलत है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग भी जीजी फोर्थ पे नहीं जाएगी। तो फिर हमारी तनु ने जो प्रेडिक्शन दिया था कि जीजी फोर्थ पे होगी वो गलत है। मतलब जीजी उसका सिलेक्शन सही है तनु का, लेकिन उसकी ये रैंक गलत है। तो तनु का कोई और सिलेक्शन कौन सा सही है, टीआर, ईवी, जीजी और डीडी और एसएसपी। तो तनु का फिर ये कोई प्रेडिक्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो डीडी और एसएस में से अभी भी मुझे कुछ डिसाइड करना है। ठीक है, तो मैं इस प्रेडिक्शन के साथ आगे बढ़ तो पा रहा हूँ कि टीआर थर्ड पे हो सकता है, ईवी सेकंड पे हो सकता है, जीजी फर्स्ट पे हो सकता है। कोई और पॉसिबिलिटी, ठीक है, कोई और पॉसिबिलिटी पे विचार कर लेते हैं। मैं इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी पे विचार करूं तो मैं थोड़ा सा चीजें टैली करना शुरू करता हूं, समझने की कोशिश करना कि अगर डीडी और एसएस यहाँ आए, है ना। मेरे पास ये कंफ्यूजन है कि एसएसपी और डीडी में से कोई एक फोर्थ पे आएगा। तो डीडी फोर्थ पे नहीं आ सकता क्योंकि देव के प्रेडिक्शंस गलत है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन हमें यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। अगर कल को एसएसपी और डीडी में से डीडी सेलेक्ट हुई तो वो फोर्थ पे नहीं आ पाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो क्यों। और इवन अगर डीडी सेलेक्ट हुई तो डीडी को तो फिर फर्स्ट पे आना पड़ेगा, क्योंकि तनु का प्रेडिक्शन फिर जीजी गलत है। तो फिर तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो मैं फॉलो कर ही नहीं सकता अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं तो आई थिंक ये पॉसिबिलिटी मुश्किल है। चलो और क्या हो सकता है समझते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि सेकेंड और थर्ड ईवी और टीआर तो हैं, पर जीजी फोर्थ नहीं था, हमने ये मान लिया था, है ना। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ थर्ड और फोर्थ टीआर और जीजी है ना। थर्ड और फोर्थ टीआर और जीजी हैं। क्या इस थॉट को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो थोड़ा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं। मैं फोर्थ पे जीजी रखता हूं तो क्या होगा। देखो तनु ने भी फोर्थ पे जीजी को वैलिडेट किया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि शायद जीजी फोर्थ पे रही हो। अच्छा, उससे क्या सही या गलत हो रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं वापस से थोड़े ऑब्जर्वेशंस बनाता हूँ। मैंने टीआर को थर्ड मान लिया, जीजी को फोर्थ मान लिया, तो कुछ गलत हो रहा है क्या वो समझते हैं। देखो टीआर को थर्ड और फोर्थ जीजी को मान लेने से करण के जो 2 प्रेडिक्शन है वो सही जा रहे हैं, अभी तक सब सही चल रहा है। इवन तनु का जो एक प्रेडिक्शन सही है वो भी सही जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो मैं सिंक में हूं, मतलब मुझे कोई ऐसा वैलिड मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आता हो दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक अभी तक तो होपफुली सब सही चल रहा है। तो मैं इसको आगे प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ, गलत होगा तो हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब रही बात फर्स्ट और सेकंड रैंक की कि फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आप किसको सेट करोगे। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक के अलावा मेरे पास चॉइसेस हैं किस किस को लेकर भाई, ईवी को लेकर और हमारे एसएसपी और डीडी में से किसी एक को लेकर। तो मैं कैसे चीज़ें सेट करूंगा उस पर हम विचार करना शुरू करते हैं। देखो
ईवी के पास अब चॉइस क्या है, आप समझने की कोशिश करो। अगर मैंने ये कह दिया कि करण की ये दो ही रैंक सही हैं, तो ईवी गलत होनी चाहिए। और करण ने अगर ईवी को सेकंड पे प्रेडिक्ट किया था, तो सेकंड पे अब ईवी आने से रहा, तो कहना है नॉट से कि ईवी को फर्स्ट पे ही जाना पड़ेगा। अगर इस प्रिडिक्शन के साथ आगे बढ़ा जाए तो सेकंड रैंक के पास अब चॉइस क्या है वो समझना, ध्यान से देखना। एसएसपी और डीडी में से कोई एक चुनना है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि सेकंड रैंक एसएसपी को दे दी, मान लो एसएसपी सेलेक्ट हुआ होता, तो एसएसपी के पास सेकंड रैंक चली गई। पर सेकंड रैंक जो एसएसपी प्रिडिक्ट की है तनु ने, वो तो गलत है, क्योंकि तनु की जीजी हमने सही प्रिडिक्ट मानी है और तनु का एक ही प्रिडिक्शन सही है। आई होप आप समझ रहे हो। तो इस हिसाब से तो ये गलत एजम्पशन है, और अगर ये एजम्पशन गलत है तो मेरे पास एक ही चॉइस है कि मुझे एसएसपी और डीडी में से डीडी को लेना होगा, यानी सेकंड रैंक जो आई होगी दैट शुड हैव बीन रिजर्व्ड बाय डीडी। क्योंकि आप वैलिडेट कर लो इस बात को कि अगर मैंने डीडी को चुना तो डीडी की रैंक आई है सेकंड, और तनु ने डीडी को प्रिडिक्ट किया है फर्स्ट, और तनु का प्रिडिक्शन गलत है, तो यहाँ पे मेरा असम्पशन बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये ऑर्डर समझ आ रहा है। ईवी, डीडी, टीआर और जीजी, हमारा क्यू एक सही आंसर होना चाहिए। आई होप क्लैरिटी है आपको। तो अगर क्लैरिटी है तो आई होप अब आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। विच क्रिएटर ट्रेंडेड एट पोजीशन 3 ऑन यूट्यूब? आई थिंक टीआर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? हम ये निकाल चुके हैं। हु सिक्योर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? ईवी, डीडी, टीआर और जीजी। तो ईवी, डीडी, टीआर और जीजी, ऑप्शन बी। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ ईवी? तो ईवी की पोजीशन हम देख ही पा रहे हैं फर्स्ट। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ डीडी? तो वो हम देख ही पा रहे हैं सेकंड। आई होप आसान सा क्वेश्चन, अगर आप चीजें ठीक से सोचें तो इजीली आंसर कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। व्हाट डज इट से? वो क्या बोल रहा है वो समझना शुरू करते हैं। Consider a 3 by 3 grid of numbers given below. In this grid, a flip move is defined as swapping of the position. तो अगर मैं 1 और 5 को स्वैप करूं, so that is called one flip. I hope ये बात आप समझ पाए। अब a grid pattern is defined as any unique arrangement of these numbers, है ना। पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक स्क्वायर 3 by 3 के मैट्रिक्स पे अरेंज किया। What is the minimum number of flip moves required to rearrange the given grid pattern into a new grid pattern such that, कंडीशन सुनना, सम ऑफ द नंबर्स इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम इज 9 मोर देन दैट ऑफ द मिडिल। तो अगर मिडिल में मैं मान लेता हूं x है सम, तो लेफ्ट मोस्ट में होना चाहिए x प्लस 9, और बोल रहा है 18 मोर देन दैट ऑफ द राइट मोस्ट। तो राइट मोस्ट से ये 18 ज्यादा होना चाहिए, मतलब राइट मोस्ट इससे 18 कम होना चाहिए, मतलब x प्लस 9 माइनस 18 दैट शुड बी x माइनस 9। अच्छा, मुझे पता है 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज हाउ मच 45। तो अगर मैं 45 को इन तीनों में स्प्लिट करूं तो ये कितना आ जाता है भाई? अगर आप देख पा रहे हो तो ये आ जा रहा है 3x इज इक्वल्स टू 45, यानी x आ रहा है आपका 15। तो टेक्निकली अगर आप ठीक से देखोगे तो मिडिल रो जो है दैट शुड बी 15, दिस शुड बी 15 प्लस 9, आई थिंक 15 प्लस 9 इज 24, एंड दिस शुड बी 15 माइनस 9 विच इज कितना? आई थिंक 7, आई बिलीव, सॉरी 6। आई होप इस बात को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि हम क्यों कह पा रहे हैं। अब आगे अगर मैं बढ़ूँ तो ये वाला डेटा हटा के थोड़ा और डेटा समझता हूँ। ये आपको आई होप समझ आ रहा है कॉलम वाइज ये चीज़ें ऐसी क्यों रही होंगी, है ना। मतलब फर्स्ट कॉलम का सम 24, सेकंड का 15 और थर्ड का 6, एंड द सम ऑफ द नंबर्स इन द टॉप रो इज 3 मोर देन दैट ऑफ द मिडिल रो, है ना। तो टॉप रो का जो सम है वो 3 ज्यादा है, तो अगर ये x होता तो x प्लस 3 होता। और क्या बोल रहा है वो? एंड 6 मोर देन दैट ऑफ द लास्ट रो, तो इससे 6 ज्यादा है, तो ये 6 कम होगी या नहीं हो जाएगा x माइनस 3। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ पे मेरा सम कितना आ जाएगा? 3x, जो कि किसके इक्वल होगा इस बार? 45 के। तो x तो अभी भी 15 आ रहा है, तो मेरे पास कहानी क्या हो जाएगी साहब? ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 3 विच इज 18, स्पेस अगर हम समझें, और ये 12। तो मैं कहाँ लिखूँ? यहीं कहीं लिख लेता हूँ 15, 18 और 12, है ना। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और यहीं लिख लेता हूँ आपके लिए कि आपके पास ये जो डेटा होना चाहिए दिस शुड बी 15, 18 एंड 12। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझते हैं। बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप मूव्स रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द गिवन ग्रिड पैटर्न इनटू अ न्यू ग्रिड पैटर्न। तो नया ग्रिड पैटर्न बनाना है। अब मेरा ये मानना है कि देखो ये 24 ये 18 है, मतलब मुझे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में सब मैक्सिमम चाहिए। तो मैं अगर 9 को यहाँ रखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, समझेंगे। अगर नहीं होगा तो गलत होगा, बैक ट्रैक करेंगे, ठीक करेंगे। इवन मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मैं 8 को यहाँ रख देता हूँ, तो मैं इस असम्पशन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि अगर ये अरेंजमेंट करूँ तो 9 और 8 कितना हो गया आपका? 17। 9 और 8 हो जाता है आपका कितना भाई? 17। आई होप सही बोल रहा हूँ। और ये सम कितना है आपका? 18। तो आई थिंक यहाँ पे 1 रखने पे बात बन जाएगी। या ऐसा कर सकता हूँ क्या कि अगर मैं 8 यहाँ रख दूँ तो कोई चांस?
तो क्योंकि मुझे बेसिकली 24 यहाँ चाहिए, तो मैं दो बड़े नंबर्स इस तरफ रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब उल्टा ले लिया था। 18 के पास जाने के तरीके और भी हो सकते हैं। तो 24 तक आने के लिए अगर मैंने 9 और 8 को ऐसा रखा तो क्या पॉसिबिलिटी है? आई होप आपको डेटा समझ आ रहा है। तो अगर 9 और 8 को ऐसा रख के अगर मैं आगे बढ़ूँ, तो आई होप 24 तक जाने के लिए तो चीज़ें सॉर्टेड हमें दिख रही हैं कि आप कैसे बढ़ोगे। 9 और 8 आपका वापस से हो जा रहा है 17। 17 में आप कितना ऐड करोगे कि 24 आ जाए? तो आई थिंक कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, आप 7 के साथ आगे बढ़ सकते हो। कोई कन्फ्यूजन आई थिंक नहीं है। अब अगर सम 18 की तरफ मैं विचार करूँ, तो सम 18 लाने के लिए क्या हमारे पास स्कोप हो सकता है, उसके बारे में सोचते हैं। तो आई थिंक हम अगेन यहाँ भी बड़े बड़े नंबर्स यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि सम 18 एक बड़ा नंबर है। तो 7 के अंदर एक चॉइस जो मेरे पास बचती है वो है 6। तो 9 और 6 आपके पास हो जाता है आई थिंक 15। तो 18 तक जाने के लिए आई थिंक अब 3 हमारे लिए एक सफिशिएंट नंबर होना चाहिए। आई थिंक अभी तक हम सही चल रहे हैं, और कुछ गलती होगी तो करेक्ट करेंगे, है ना? अब क्या बोलते हो भाई? सर अब आपको जो लेना चाहिए वो ये कि आपको यहाँ पे सम चाहिए 15, है ना? 15 सम भी एक बड़ा नंबर है और यहाँ भी सम 15 चाहिए। मतलब अब अगर मैं समझूँ तो यहाँ एक बहुत क्रूशियल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ सम 15 लाना चाह रहा हूँ, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, तो अगर मैंने एक नंबर 5 लेने की कोशिश की, है ना, तो 8 और 5 कितना हो जा रहा है? सर 8 और 5 आपका हो जा रहा है बेसिकली 13। और 13 में अगर आप 2 ऐड कर दें, है ना, ध्यान से सुनना, 13 में अगर आप 2 ऐड कर दें तो ये हो जा रहा है 15। और अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचूं तो 6 और 5 11, और आई थिंक 6 और 5 11 और 4 15। तो क्या अभी तक मैं चीज़ें सॉर्टेड चला रहा हूँ? बस थोड़ा वैलिडेट कर लो कि अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो आई थिंक सही है। अरेंजमेंट तो हमने सही बनाया है। आई होप ये डेटा हमारा बिल्कुल उस कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहे। तो अब क्या हुआ इससे? सर इससे आई थिंक हम वो बना पाए जो डिजायर्ड था। तो क्वेश्चन था कि कितनी कम से कम फ्लिप मूव में काम हो जाएगा। तो क्या किया मैंने? सर अगर मैं ठीक से देखूं तो मुझे 1 और 9 को स्वैप करना है। देखो 1 और 9 को स्वैप करेंगे तो पहली फ्लिप मूव हो गई। फिर सर अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको 6 और 2 को स्वैप करना है, तो 6 और 2 को स्वैप करने वाली आपकी सेकंड फ्लिप मूव हो गई, है ना, दो हो गए आपके। इसके बाद अगर मैं देखूं तो सर आपको 8 और 4 को भी स्वैप करना है, तो 8 और 4 को स्वैप करने की ये थर्ड फ्लिप मूव हो गई। आई थिंक 3 5 7 तो अभी भी वही के वही है जहां वो होने चाहिए थे। सो आपका आंसर होगा मिनिमम कितनी फ्लिप मूव्स लगेंगी आपको? 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। नाउ if the grid of numbers were to be 4 by 4 with numbers 1 to 16, what is the minimum number of flip moves that will always be sufficient to rearrange the grid into any given grid pattern? देखो मैं इसको पहले 3 by 3 से समझाता हूँ कि आप कैसे सोच सकते हो। मुझे कुछ भी चाहिए, इससे कुछ भी, मतलब कोई सा भी पैटर्न चाहिए मुझे, कुछ भी बनाने को दे दे, तो मिनिमम कितना लगेगा? तो मैं वर्स्ट केस सोचता हूँ। आप समझो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि पहले 1 को मैं कहीं और लेके गया जहां वो चाहिए, फिर जो चाहिए उसको कहीं और लेके गया, फिर कहीं और किसी को, मतलब बेसिकली आप अगर चीजें अरेंज करोगे तो आपको ये क्यों नहीं लग रहा कि किसी को भी उसकी डिजायर्ड पोजीशन बना पर पहुंचाने के लिए एक फ्लिप तो लगेगा। फिर 2 यहाँ जाएगा गलती से, पर 2 यहाँ नहीं चाहिए, मान लो 2 यहाँ चाहिए था तो उसको वहां पहुंचाना पड़ेगा। मतलब हर एलिमेंट को उसकी डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंचाने के लिए एक फ्लिप तो लगेगा। एक फ्लिप में मैं पहुंचा सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट एलिमेंट होगा वो तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहुंच चुका होगा या सेट हो चुका होगा जहां पे उसकी आइडियल या स्टैंडर्ड या डिजायर्ड या वांटेड पोजीशन होगी। सो टेक्निकली अगर मेरे पास 3 by 3 का एक मैट्रिक्स है, 9 एलिमेंट्स है, तो अगर मैं 8 एलिमेंट्स को अरेंज कर दूं उनकी डिजायर्ड पोजीशन पे, तो 9th एलिमेंट तो अपने आप वही सेट हो जाएगा ना। तो अगर मेरे पास 9 एलिमेंट्स है तो मुझे 8 फ्लिप्स लगेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। तो अगर यहाँ पे 4 by 4 में मेरे पास 16 एलिमेंट्स है तो मुझे 15 फ्लिप्स में जो चाहिए वो बना सकता हूँ। तो आई थिंक कुछ भी अगर वो मुझसे मांगे इनटू एनी गिवन ग्रिड पैटर्न, तो मैं 15 मूव्स में अपने डेटा को अचीव या अटेन कर सकता हूं, जो भी वो डिजायर्ड मांग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A 3 by 3 magic square is a grid of numbers filled with distinct positive integers in the range 1 to 9, arranged in a 3 by 3 square where the sum of the numbers in each row, किसी भी रो का सम ले लें आप, किसी भी कॉलम का सम ले लें, या फिर दोनों मेन डायगोनल्स का सम ले लें, ये हमेशा सेम होता है। तो वो सम को वो कहता है मैजिक कांस्टेंट। सो वो कह रहा है व्हाट इज द मैजिक कांस्टेंट फॉर अ 4 by 4। मैं पहले तो आपको समझाता हूँ कि 3 by 3 या कुछ भी आपको दे दे तो आप कैसे सोच सकते हो। देखो मैजिक कांस्टेंट का कंसेप्ट क्या है आप समझो। मैजिक कांस्टेंट मतलब सम, तो आप समझो इन तीनों का सम कितना हो सकता है? सर 1 से लेके 9 तक का सम जो होगा उसको आप इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि जो इसका सम है वही इसका सम है, वही इसका सम है, वही इसका सम है। सो टेक्निकली आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो कि 1 से लेके 9 तक का जो सम है उसी सम का आपको 1/3 ले लेना है।
आप समझे या नहीं? आई होप बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैंने बोला है। तो इसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा वो समझो। सर आपके पास अगर एक n बाय n की ग्रिड में दे दूँ आपको, ये ग्रिड है जो कि n बाय n की है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली 1 2 3 4 से लेके n तक के आपके टोटल, सॉरी n तक के नहीं, इसमें 1 से लेके n स्क्वायर तक के आपके पास नंबर्स होंगे। आप समझ रहे हो n स्क्वायर तक के क्यों होंगे? तो अगर n स्क्वायर तक के नंबर्स होंगे तो n स्क्वायर तक के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? सर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो ये तो सम हो गया। अगर इस सम को आई होप आप समझ पा रहे हो, मुझे n रोज या n कॉलम्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो अगर n रोज में ही डिवाइड करना है तो मैं n से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने इसको n से डिवाइड किया होता तो बेसिकली ये एक n स्क्वायर हट जाएगा। तो आपको कोई भी n बाय n का वो ग्रिड दे दे और उसके लिए मैजिक नंबर पूछे तो इसका फॉर्मूला है। ऑल्दो इसमें रटने जैसा कुछ नहीं, आप उसको लॉजिकली समझोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझसे उसने क्या पूछा है, मैजिक कांस्टेंट किसके लिए पूछा है, एक 4/4 के लिए पूछा है, तो इसमें n की जगह आप 4 रख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। n की जगह अगर मैं 4 रखूंगा तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 दैट्स आई थिंक 17 बाई 2। तो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 17 इंटू 2 यानी 34। आई होप आपको बहुत लॉजिकली चीज़ें समझ आ रही हैं कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर 34 क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है उस पर विचार कर लेते हैं भाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a 3/3 मैजिक स्क्वायर इज अ ग्रिड ऑफ नंबर्स filled with is equal to 9, है ना। वो मैजिक कांस्टेंट ही पूछ रहा है 5/5 का। तो आई थिंक सेम फॉर्मूला लगाना है ना। फॉर्मूला क्या था? आई थिंक n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n ही था, नहीं डिवाइडेड बाय आई थिंक 2 था जितना मुझे याद आ रहा है। आप बना भी सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 यानी 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13 इंटू 5 दैट इज 65। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 65। आई होप यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव करूँ, सो व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन से? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ 3/3 मैजिक स्क्वायर इज देयर, है ना, ग्रिड ऑफ नंबर्स 1 to 9, सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो ईच कॉलम इन द बोथ मिड डायगोनल इज सेम। मतलब ये वही मैजिक की बात कर रहा है, मैजिक कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो बोल रहे मिडिल मोस्ट पोजीशन में क्या होगा? तो आप समझो, आपको वही मैजिक नंबर सेट करना है। मतलब आप अगर समझोगे 45 का 1/3 कितना हो गया? 15। तो टेक्निकली सब जगह सम 15 15 15 15 15 15 होगा। इवन यहाँ भी 15 होगा, इवन यहाँ भी 15 होगा। और हमने अगर इस पैटर्न को सेट करने की कोशिश की तो आप याद करो, इसमें कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से सिमेट्री आपकी हेल्प करेगी आपको ये समझने में कि जो एवरेज होगा इन नंबर्स का, यानी 1 से लेके 9 तक का जो एवरेज होगा, यानी कि बेसिकली जो सबसे मिडिल मोस्ट टर्म होगी, यानी ये जो होगा यही एलिमेंट एग्जैक्ट बीच में होगा अगर आप इस मैजिक कांस्टेंट वाले आइडिया को फुलफिल या फ्लरिश या प्रोसीड कर रहे हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। जो मिडिल मोस्ट पोजीशन पे होगा एक 3/3 मैजिक स्क्वायर में, वो होगा 1 से लेके 9 तक के नंबर्स का एवरेज, यानी बेसिकली 5, यानी 5 से पहले के 4 नंबर्स उससे छोटे हैं, 5 के बाद के 4 नंबर्स उससे छोटे हैं। जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो 5 और वही सबके बीच में आएगी, तभी जाकर आपका मैजिक स्क्वायर या मैजिक कांस्टेंट वाला फीचर फुलफिल हो पाएगा। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। विद दैट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। नेक्स्ट सेट आपसे क्या बोल रहा है उसे समझना हम शुरू करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट सेट में क्या लिखा है। So here we are with the next set for the day. Let's see what does it say. It says few things, जैसे कि अगर मैं सोचना शुरू करूं तो आपके पास यहाँ पे कुछ कुछ तो है। क्या क्या है भाई? आपके पास एक यूनिवर्सिटी में कुछ इवेंट्स हैं, ओपन माइक है ना। तो आपके पास इवेंट्स क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। एक सेकंड के लिए अगर मैं यहाँ सोचूं तो यहाँ थोड़ा स्पेस ज़्यादा है और ये क्वेश्चन ही है, तो आई थिंक मैं इसे यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ें सोच पाएंगे, है ना। तो मेरे पास इवेंट्स क्या क्या है भाई? मेरे पास इवेंट्स हैं ओपन माइक, है ना, इसके अलावा हैकाथन, और क्या है भाई? साइक्लाथन, देन वी हैव पावर लिफ्टिंग, आफ्टरवर्ड्स वी हैव लैंड गेमिंग, है ना। आई थिंक यही है, कुछ और मिस तो नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा देर आर सम फ्रेंड्स, है ना, कुछ फ्रेंड्स हैं। तो वो फ्रेंड्स कौन कौन है वो समझ लेते हैं। देर इज करण, देन वी हैव शरण, देन वी हैव मनन, मनन के बाद फनन और गगन, ठीक है। ये कुछ फ्रेंड्स हैं। आई होप ये डेटा अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल और वर्केबल है। अब क्या, अब बस क्लू को समझते हैं और चीजें सोचना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है वो? दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट नंबर ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द अवेलेबल 5।
तो सबने अलग अलग नंबर ऑफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। मतलब करण ने अगर एक में किया तो शरण ने दो में किया होगा, मान लो मनन ने तीन में किया होगा, फनन ने चार में किया होगा और गगन ने पांचों में किया होगा, और पांच ही है। तो ये तो तय है कि कोई ना कोई सिर्फ एक में कर रहा होगा, कोई ना कोई सिर्फ दो में ही कर रहा होगा, कोई ना कोई सिर्फ तीन में एग्जैक्टली थ्री में कर रहा होगा, कोई ना कोई एग्जैक्टली फोर में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, और कोई ना कोई एग्जैक्टली फाइव में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ये लर्निंग मुझे याद रखनी है ना। अच्छा, एक और बात, एग्जैक्टली थ्री स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ओपन माइक। तो ओपन माइक में जो मेरे टिक्स आएंगे वो तीन ही आएंगे, एग्जैक्टली थ्री टिक्स आएंगे, दो में क्रॉस आएगा, है ना। दूसरा लॉजिक, लैंड गेमिंग इज द ओनली इवेंट इन विच ऑल थ्री ऑफ करण, शरण एंड गगन आर पार्टिसिपेटिंग। तो करण, शरण और गगन तीनों अगर साथ आ सकते हैं तो वो इकलौता गेम हमारे पास जो है वो लैंड गेमिंग ही है। मतलब करण, शरण और गगन को अगर आपने साथ में बिठाया तो ये कहीं और आएंगे ही नहीं। आई होप आप मेरी लाइन समझ पा रहे हो। तो करण, शरण और गगन को आपको लेके चलना है, करण, शरण और गगन, तो वो लैंड गेमिंग में ही आएंगे। तो करण, शरण और गगन, मतलब ये तीनों और किसी में साथ नहीं आ सकते। मतलब अगर कोई भी आप मुझे थोड़ी एंट्री मिल रही है तो कहीं और पे करण, शरण और गगन पे राइट क्रॉस करना है तो मैं तीनों को साथ में नहीं कर पाऊंगा, ये बात याद रखनी है। थर्ड स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन पावर लिफ्टिंग चैलेंज इज मोर देन दैट इन एनी अदर इवेंट। आप ये बात भी याद समझो, पावर लिफ्टिंग में आपको मैक्सिमम टिक्स मिलेंगे, है ना। तो पावर लिफ्टिंग आपका हाईएस्ट पार्टिसिपेट करने वाला इवेंट है, मतलब पावर लिफ्टिंग में आपको सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। आई रिपीट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन पावर लिफ्टिंग चैलेंज इज मोर देन दैट इन एनी अदर इवेंट। ठीक है, मैं ये बात याद रखूंगा। फोर्थ, अमंग हैकाथन एंड पावर लिफ्टिंग, तो हैकाथन और पावर लिफ्टिंग में शरण एंड मनन पार्टिसिपेट इन बोथ इवेंट्स। तो शरण और मनन ने हैकाथन में भी पार्टिसिपेट किया और पावर लिफ्टिंग में भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। बट फनन पार्टिसिपेट्स इन ओनली पावर लिफ्टिंग, तो फनन ने सिर्फ पावर लिफ्टिंग में ही पार्टिसिपेट किया है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि फनन ने आपके ये जो हैकाथन है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। आई होप ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आई है आपको, और इससे ये भी समझ आ गया है, उसने बहुत क्लैरिटी के साथ बोला है दैट फनन पार्टिसिपेट्स इन ओनली पावर लिफ्टिंग। मतलब फनन पावर लिफ्टिंग के अलावा कहीं और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, आई होप ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ आप सोच पा रहे हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। साइक्लोथॉन इज द ओनली इवेंट इन विच बोथ मनन एंड गगन, देखो ये फिर से बोथ वाली बात आई कि मनन और गगन जो है, मनन और गगन अगर कहीं साथ आएंगे तो उससे साइक्लोथॉन में आएंगे, है ना। तो मैं ये बात याद रखूंगा कि साइक्लोथॉन इज द ओनली इवेंट इन विच मनन एंड गगन पार्टिसिपेट। तो मनन और गगन ने साथ में सिर्फ साइक्लोथॉन में ही पार्टिसिपेट किया है। आई होप कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई हेजिटेशन नहीं है। अब क्या सर, अब आप एक बात समझो, हमने कहा था कि हर स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब किसी की भी दो स्टूडेंट की नंबर ऑफ एक्टिविटी सेम नहीं हो सकती। तो फनन जो है वो एक एक्टिविटी में ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मिनिमम एक मुझे मिल गई। अब मेरे पास चॉइसेस क्या है वो समझना। अब मेरे पास चॉइसेस हैं कि अब किसी के पास दो होंगी, किसी के पास तीन होंगी, किसी के पास चार होंगी, किसी के पास पांच होंगी। इवन मैं इस बात को लेकर भी श्योर हूं कि जो आपके शरण और मनन है वो दो एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों तीन तीन में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। आई होप आप मेरी बात सुन रहे हो। तो शरण और मनन के पास क्या क्या चॉइसेस है, तीन, चार और पांच। मनन की भी मैं लिख देता हूँ तीन, चार और पांच, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। इसके अलावा और क्या, अब सुनना, गगन दो में पार्टिसिपेट कर रहा है तो गगन के पास भी चॉइसेस है कि वो दो से ज्यादा रख ले, तो गगन दो या दो से ज्यादा में पार्टिसिपेट करेगा, और करण भी दो या दो से ज्यादा में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी तो ऐसा कोई खास कंक्लूजन मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ तक, तो आई होप मेरे पास चीजें सॉर्टेड चल रही हैं। तो अब मैं किस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ इस बारे में विचार करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ सोच के, हर हर स्टूडेंट अब कम से कम दो इवेंट में तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, फनन को छोड़ के, मैं ये जानता हूँ। मतलब सब दो में करेंगे, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ 3, 4, 5, मतलब मैं इस बात को लेकर तो श्योर हूँ कि सबके पास कोई ना कोई नंबर आएगा, किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 4, किसी के पास 5। तो 2 लाने का स्कोप जो है, मतलब दो इवेंट्स में जो पार्टिसिपेट करवाने का स्कोप है, वो मेरे पास करण और गगन के पास ही है। आप समझो मेरी बात को, होने को गगन भी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, करण भी दो या दो से ज्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, पर मुझे किसी को तो दो इवेंट में पार्टिसिपेट कराना है, जो कि शरण और मनन कर नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी तीन तीन में तो कर ही चुके हैं, तो वो तीन या तीन से ज्यादा में करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरे पास जो चॉइस है किन्हीं दो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाने की, वो या तो करण को लेकर है या गगन को लेकर है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि करण और गगन में से ही कोई एक किन्हीं दो इवेंट्स या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा।
आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं चीजें अरेंज करना शुरू करता हूँ, है ना, ध्यान से देखना। The number of students who participate in powerlifting challenge is more than that of any other event। मतलब पावर लिफ्टिंग में जो पार्टिसिपेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मतलब पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहा होगा। मतलब किसी भी एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेशन हुआ है, मतलब अगर मैं ऐसे समझूं कि देखो ओपन माइक में कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। अब ओपन माइक में ऑलरेडी 3 हो गए, तो पावर लिफ्टिंग में 3 से तो ज्यादा ही होंगे। तो पावर लिफ्टिंग में 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। अब अगर मैंने पावर लिफ्टिंग में 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, क्या मैं पावर लिफ्टिंग को 5 लोगों से पार्टिसिपेट करवा सकता हूँ? अगर पावर लिफ्टिंग को मैंने 5 लोगों से पार्टिसिपेट करवाया तो अगेन मैं इस वायलेशन में आ जाऊंगा कि फिर गगन के पास तो 3 चले ही जाएंगे, करण के पास भी 2 चले जाएंगे, और फिर शरण और मनन को एडजस्ट करने के लिए मुझे चीजें दिक्कत आएंगी, या फिर मैं मनन और गगन को साथ रख पाऊंगा क्या, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगेन ये चैलेंज मुझे दिख रहा है कि अगर पावर लिफ्टिंग में 5 ने पार्टिसिपेट कर लिया तो आई होप आपको दिख रहा है कि मनन और गगन एक साथ पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ साइक्लोथॉन के अलावा। तो यहाँ पे मनन और गगन साथ नहीं आ सकते। मैं इस कंडीशन का एडवांटेज लेके कि ओपन माइक में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो पावर लिफ्टिंग में 3 से ज्यादा ही करेंगे, पावर लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो पावर लिफ्टिंग में 5 कर नहीं पाएंगे तो 4 ही करेंगे। अब 4 में ये चारों करेंगे या ये चारों, क्योंकि गगन नहीं कर सकता, क्योंकि गगन और मनन एक साथ नहीं करेंगे, तो करण ही कर सकता है। तो एक और क्लैरिटी मुझे मिल गई कि यहाँ पे करण पार्टिसिपेट करेगा और ये नहीं करेगा। आई होप आप समझ पाए। तो पावर लिफ्टिंग के 4 लोग मुझे मिल गए हैं। आई होप बहुत क्लैरिटी हमारे पास है। इवन ओपन माइक में हमें 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब अगर ओपन माइक में मुझे 3 लोगों को सिलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे इंश्योर कर सकता हूँ, वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लैन गेमिंग को लेकर कुछ पता था क्या? LAN gaming is the only event in which all three of Karan, शरण एंड गगन पार्टिसिपेट। तो लैन गेमिंग को लेकर हमें पता था कि उसमें वो इकलौता ऐसा इवेंट है जिसमें करण, शरण और गगन ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि करण, शरण और गगन ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बाकी 2 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। कैन आई नॉट से दैट? आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास लैन गेमिंग में करण, शरण और गगन तीनों को रखने का एक ये ऑप्शन है। अगर मैं इस बात को आगे ना बढ़ाऊं, मतलब मैं कहूं कि नहीं, आपके पास थोड़ा सा स्कोप कम है, कि आप ऐसा मान लो कि ठीक है, आपने कहा कि फनन को तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं क्योंकि वो एक में ही पार्टिसिपेट कर रहा था, तो लैन गेमिंग में ये 3 आ रहे हैं, तो इसको लेके आपका ओपिनियन क्या है, ये होगा या नहीं, उस पर फिर से थोड़ा ओपिनियन हम अपना डेवलप करते हैं। तो मैं इस डेटा को आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास चॉइसेस सेट हो रही हैं या नहीं, वो समझते हैं। देखो भाई, फनन ने 1 ले लिया है, करण के पास कितनी चॉइसेस है, 2 या 2 से ज्यादा में पार्टिसिपेट करने की, गगन के पास भी 2 या 2 से ज्यादा में पार्टिसिपेट करने की है, शरण के पास कितनी ज्यादा है सर, 3 या 3 से ज्यादा, बिल्कुल सही बात है, और मनन के पास भी 3 या 3 से ज्यादा। अब ये तय है किसी के पास 2 जाएंगे, किसी के पास 3, किसी के पास 4 और किसी के पास 5। तो वो जो 2, 3, 4 और 5 की चॉइसेस है, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करूं तो मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर सकता हूं। तो मैं मनन को लेके अपना ओपिनियन मांग रहा हूं कि मनन लैन गेमिंग में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। फिर वही बात, आप सोचो, अगर यहाँ पे गगन ने पार्टिसिपेट किया तो मनन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, तो यहाँ भी मेरा ये क्रॉस आएगा। आई होप आप समझे क्यों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि मनन और गगन साथ नहीं आएंगे। इवन ये लॉजिक थोड़ा और आगे में बढ़ू तो करण, शरण और गगन, देखो करण, शरण और गगन कहीं और भी दिख रहे हैं क्या? तो आई थिंक इसके अलावा अभी तो मेरे पास कोई और स्कोप बन नहीं रहा है कि करण, शरण और गगन तीनों कहीं और आ रहे हो। तो ये आई थिंक बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बोल पा रहा हूँ। तो अब अगर मुझे मनन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली या लैन गेमिंग के बारे में क्लैरिटी मिली, तो लैन गेमिंग को लेके भी मैं बहुत श्योर हूँ। अब अगला मेरा क्लू कहाँ होना चाहिए? इवन अब मैं नंबरिंग को लेकर थोड़ी और क्लैरिटी लाना चाहूँ तो मैं नंबरिंग को लेकर और क्या क्लैरिटी लाऊंगा, उस पर विचार करना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर सब लोग एक ना एक कम से कम इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फनन हमारा एक में ही कर पाएगा। इसके अलावा अगर मैं कुछ और कहना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि करण जो है हमारा, वो साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? देखो, करण, शरण और गगन हमारे जो हैं 3 लोग, ध्यान से देखिएगा मेरे पास कौन कौन है, करण, शरण और गगन। तो नंबरिंग को लेकर मेरे पास क्या चॉइस है? मनन यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट, मतलब 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो 3 तो मनन के पास भी हैं। करण के पास अभी भी 2 इवेंट्स हैं, शरण भी अभी मेरे पास 3 इवेंट्स में चल रहा है।
तो मैं अब थोड़ा सा नंबरिंग ऑफ इवेंट्स को भी साथ में लेके चलना चाह रहा हूँ कि नंबरिंग ऑफ इवेंट्स में मेरे पास नंबर ऑफ इवेंट्स 1 तो हो चुका है, 2 के लिए अभी भी चॉइसेस मेरे पास ओपन है कि करण और गगन में से कोई एक होगी, और शनर और मनन अपने 3, 4 या 5 को लेकर जाएंगे। एक और बात आप सोचो कि हमारे पास 4 और 5 के लिए चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो रही हैं। आप समझना, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो दो हैं ये दोनों ही 4 और 5 डिसाइड करेंगे? और मेरी ऐसी फीलिंग है कि ये जो दोनों हैं ये दोनों ही आपके 2 और 3 डिसाइड करेंगे। आई होप आप ये लॉजिक बिल्ड कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सबको डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाना है। तो जो 1 2 3 4 5 वाली कहानी है ये मैं क्लैरिटी के साथ कह सकता हूं। मतलब मुझे अब ये समझना पड़ेगा कि ओपन माइक को लेके मैं कुछ देख सकता हूं क्या? देखो, ओपन माइक को लेके अगर मैं देखना चाहूं तो ओपन माइक में मुझे 3 लोग चाहिए। अब सुनना, ओपन माइक में 3 लोग चाहिए। फनन तो हट चुका है। 4 चॉइसेस हैं, करण चाहिए, शरण चाहिए, मनन चाहिए और गगन चाहिए। अब आप समझने की कोशिश करना, करण, शरण और गगन तीनों नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात है, करण, शरण और गगन तीनों नहीं आ सकते। तो चूंकि मुझे कम से कम 3 लोग तो चाहिए ही चाहिए, 4 में से तो कोई 3 ब्लॉक्स तो टिक करने पड़ेंगे। तो करण, शरण और गगन में से कोई एक तो डेफिनेटली आएगा। सॉरी, कोई 2 तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कितने टिक करवाने? 3 टिक करवाने, 4 चॉइसेस हैं। तो करण, शरण और गगन में से कोई 2 आएंगे, तो एक टिक तो डेफिनेटली कौन लेके जाएगा? आई होप आई कैन डेफिनेटली से कि यहाँ पे मनन का आना तो तय है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे मनन तो हमारा सेट हो ही जाएगा कि ओपन माइक को मनन पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अब मनन के अलावा करण, शरण और गगन में से मैं किसे सेलेक्ट करूंगा, ये आप समझने की कोशिश करो कि अब अगर मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट करवा दिए, आप सुनना, और यहां भी 3 सेलेक्ट करवा दिए, तो मैं 2 का स्कोप अब खत्म कर दूंगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो 2 का स्कोप बनाए रखने के लिए कि किसी ने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, मैं या तो करण को सेलेक्ट करूंगा या गगन को सेलेक्ट करूंगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। मतलब मैं ये भी श्योर कर चुका हूं कि शरण तो आएगा, अब करण और गगन में से कोई एक आएगा। मैं ये वाला डेटा हटा देता हूं क्योंकि अब ये डेटा बहुत बदल चुका है ना। तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए कि मैं करण और शरण को डिसाइड कर चुका हूं कि ओपन माइक में 2 लोग आ रहे हैं। अब तीसरा शख्स करण और गगन में से कोई एक होना चाहिए, इस बात पे हम विचार कर लेते हैं। आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है कि गगन को लेकर मैं अब अपना ओपिनियन क्या रखूंगा, है ना। फिर वही बात, अगर मैं फिफ्थ के पास जाऊं तो फिफ्थ ने बोला था मनन और गगन। देखो, गगन ना इन दोनों के साथ कॉमन है, तो गगन की लड़ाई यही है कि अगर अब गगन को लाना है तो मनन को हटाना है, पर मनन तो आएगा। तो मनन आ गया तो गगन नहीं आएगा, है ना। तो अगर गगन नहीं आ रहा है तो मेरे पास चॉइस किसकी है? करण की। आई होप अब बहुत क्लैरिटी के साथ आप सोच पा रहे हो कि अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन डिस्ट्रिक्ट रखना चाहूँ तो मैं सोच पा रहा हूँ कि अब क्लैरिटी हमें है कि देखो, मनन ने 4 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लिया है, तो 1 और 4 मेरे पास आ चुका है। इवन यहाँ पे 3 आ चुके हैं, यहाँ पे भी 4 आ चुके हैं, तो 2 के लिए मेरे पास गगन की ही चॉइस बच रही है। तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि गगन हैकाथन में पार्टिसिपेट ना करे। अब आप समझना, मेरे पास एक तो 3 बनाना है और एक 5 बनाना है। मैं इसको तो 3 बना नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 4 है, और इसे 3 बनाने का चांस है। तो करण को अगर मैं 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाऊं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इकलौता शरण ही है जो 5 में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो शरण को साइक्लोथॉन में पार्टिसिपेट करना होगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि हमने कैसे चीज़ें अरेंज की है। मैं अगर आपको समझाऊं तो हम हैकाथन से शुरू करें तो हैकाथन में सिर्फ शरण और मनन ने पार्टिसिपेट किया है। ओपन माइक अगर आप देखोगे तो ओपन माइक में करण, शरण और मनन ही आपको दिखेंगे। पावर लिफ्टिंग अगर आप देखोगे तो पावर लिफ्टिंग में गगन को छोड़ के आपको चारों दिख जाएंगे। साइक्लोथॉन अगर आप देखोगे तो साइक्लोथॉन में आपको शरण और मनन के अलावा गगन दिख रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और लैंड गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो लैंड गेमिंग में आपको करण, शरण और गगन ही दिख रहे हैं। आई होप अब क्लैरिटी के साथ हम अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो जो भी हमें क्वेश्चंस दिए जाए हम उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा भाई, क्वेश्चंस हमारे कहाँ रहे? ये रहे, है ना। तो क्वेश्चंस भी दिख जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? आई थिंक मुश्किल है, पर कोशिश करते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ दिख रहा है क्या। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन पावर लिफ्टिंग? तो अगेन पावर लिफ्टिंग की बात करूँ तो पावर लिफ्टिंग में 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑप्शन डी। विद स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स इन ऑल द 5 इवेंट्स? तो 5 में पार्टिसिपेट करने वाला बंदा शरण है, ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू? पहला, ओपन माइक इज द ओनली इवेंट व्हेन ऑल 3 करण, शरण एंड मनन पार्टिसिपेट। ओपन माइक में करण, शरण और मनन ने पार्टिसिपेट किया है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है।
एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते नहीं है, तो ऑप्शन बी सी डी आई थिंक गलत होंगे। ऑप्शन बी देख लो आप, टैली करने के लिए साइक्लोथॉन इज द ओनली इवेंट, साइक्लोथॉन इज द ओनली इवेंट जहाँ पे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आई थिंक ऑप्शन ए सही है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना हम शुरू करते हैं। देखो ये आपके वही है, जैसे आप टैक्स भरते हो, स्लैब्स होते हैं, वैसे ही टैक्स के स्लैब की तरह उन्होंने डेटा का स्लैब रख दिया है। आप डेटा इतना यूज़ करोगे तो इतना पैसा बनेगा, उसके बियॉन्ड 100 GB और यूज़ करोगे तो उतना पुराना तो बनेगा और बन जाएगा, ऐसे करते करते पूरा स्लैब आपको दिया है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ इन अ मंथ एक सब्सक्राइबर 465 GB डेटा यूज़ कर रहा है तो उसका टोटल बिल कितना बनेगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 465 तो आप समझो 400 GB तक तो आप कितना पैसा दे चुके हो, 400 GB तक आप 350 रुपीज़ दे चुके हो। अब 400 GB के बियॉन्ड आपने 65 GB डेटा और यूज़ किया, तो वो 65 GB डेटा के लिए आप कितना पैसा दोगे। तो उसने बोला है 1.25 रुपीज़ पर GB, तो 65 इंटू 1.25 रुपीज़ और दोगे, तो 65 इंटू 1.25 आप कर लीजिए और इसके साथ आप इसको 350 में ऐड कर दीजिए और फाइनली जब आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 431.25 विच इज ऑप्शन डी। आई होप इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूं तो वो कह रहा है इफ इन अ मंथ इफ अ सब्सक्राइबर पेड एन एवरेज ऑफ एग्जैक्टली 0.95 पर GB, है ना, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इज डेटा यूज। देखो 465 तक हमने अभी देखा, 431 जा रहा है ना। मैं काम करता हूँ 500 GB को पकड़ के चलता हूँ। अगर मैंने 500 GB लिया तो मेरा कितना खर्चा हो जाएगा वो समझते हैं। देखो अगर मैंने 500 GB तक खर्चा किया तो 500 GB तक मुझे ये तो तय है कि 350 रुपये तो इस 400 GB के और 1.25 इसके देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई। अच्छा अगर आप ये सोच रहे हो कि 501 GB या उससे ज़्यादा क्या होगा तो वो अलग कहानी है ना। तो मैं 501 GB तक तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 500 GB तक जाना चाह रहा हूँ। तो 500 GB तक की मेरी कैलकुलेशन क्या होगी वो समझना। पहले तो मैं 400 GB तक क्या दे रहा हूँ, 400 GB तक मैं 350 रुपीज़ दे चुका हूँ। ये मैंने किसके लिए दिए, मैंने 400 GB डेटा कंज्यूम करने के लिए किया। अब उसके बियॉन्ड अगर मैंने और पैसा देना शुरू किया तो उसके बियॉन्ड मुझे हर जीबी के लिए 1.25 देना पड़ेगा। तो 1.25 रुपीज़ पर जीबी और मैंने 400 GB के बियॉन्ड 100 GB और यूज़ किया तो 100 GB और यूज़ किया। तो आप 350 में 1.25 इंटू 100 अगर ऐड करें तो आपके पास ओवरऑल टोटल बिल जो बन जाएगा दैट इज 125 और ऐड किया तो ओवरऑल इफेक्टिवली आप 475 रुपीज़ दे रहे हो। अब 475 रुपीज़ आपने दिए कितने जीबी के लिए, 500 GB के लिए। इसे ऑप्शन के थ्रू ही ट्राई करना है, गुड आइडिया। तो 475 को जब आपने 500 से डिवाइड किया दैट गिव्स यू 0.95 रुपीज़ पर GB, विच मीन्स आपका ये अजम्पशन सही था। हालांकि आप ऑप्शन सी डी ए में से ट्राई करके देख सकते थे, पर लकीली या कोइंसिडेंटली हमारा ऑप्शन बी सही निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ अ सब्सक्राइबर यूजेस 275 GB ऑफ डेटा, अगर उसने 275 GB डेटा यूज किया तो क्या कहानी रही होगी। एवरेज कॉस्ट पर जीबी पूछिए। देखो 275 में अगर 200 GB तक आपने यूज किया, आई होप आप समझ रहे हो, तो आपको 175 रुपीज़ तो पे करनी है। तो ठीक है, आप 175 रुपीज़ दे चुके हो किसके लिए, 200 GB के लिए। पर मैंने उसके बियॉन्ड कितना यूज़ किया है, 75 GB और यूज़ किया है। अब 75 GB जो एक्स्ट्रा यूज़ किया उसके लिए कितना देना पड़ेगा, 0.75 पर GB, है ना। तो 0.75 इंटू 75 विल गिव मी कितना, आई होप आप समझ पा रहे हो, 0.75 रुपीज़ पर GB है और 75 GB मैंने यूज़ किया है। तो 0.75 इंटू 75 जब आप करेंगे फाइनली तो आपके पास ये जो कैलकुलेशन आ जानी है दैट शुड गिव यू फाइनल 275 का पूरा ओवरऑल खर्चा जो आपका निकल के आएगा, जो कि फाइनली आपका आ जाएगा 231.25 रुपीज़। तो ये आ जाएगा 231.25 रुपीज़। लेकिन उसने पूछा है पर जीबी कॉस्ट कितनी है। तो सर आपने 231.25 रुपीज़ टोटल खर्चा किया है और 275 डेटा यूज़ किया है, तो 275 GB डेटा यूज़ किया है, तो कितना खर्चा किया पर जीबी अगर निकालना है तो ये डिवाइड कर दूंगा मैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.84 के इक्वल आएगा, यानी ऑप्शन ए। आई होप आसान सा क्वेश्चन है, चीज़ें सोची जा सकती है। अब ये क्वेश्चन समझना, वो कह रहा है बेस चार्ज जो है वो कुछ छेड़खानी कर रहा है। कैसे कर रहा है वो समझना। बेस चार्ज ऑफ ₹125 फॉर स्लैब 1 रिमेन्स अनचेंज्ड, बट इन एवरी अदर स्लैब द पर जीबी चार्जेस आर इंक्रीज बाय ₹0.25। ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द बिल फॉर अ सब्सक्राइबर जो 350 GB यूज कर रहा है। तो मैं दो सिनेरियो लेता हूँ, पुराने सिनेरियो से 350 GB के लिए क्या बिल बनेगा और नए के लिए, क्योंकि परसेंटेज चेंज ही बताना। तो पुराने डेटा के हिसाब से कितना बनता है, तो 350 GB यानी ये वाला, तो 300 GB के लिए तो मैं 250 रुपये दे ही रहा था,
फिर अगले 50 जीबी के लिए मुझे 1 रुपी पर जीबी देना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो, तो 50 रुपये और देने पड़ेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई। तो पुराने डेटा के हिसाब से मेरा टोटल जो होता दैट वुड हैव बीन कितना, 300 रुपये। मैं यहाँ लिखता हूँ। सो पुराना जो मेरा हिसाब होता है वो होता 300 रुपये का। आई होप इस कैलकुलेशन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पर नई कैलकुलेशन में मेरा बिल क्या बनेगा मैं वो समझने की कोशिश, पूरा डेटा चेंज हो गया समझ। बेस चेंज 125 स्लैब 1 का वही है। तो शुरू के 100 जीबी के लिए तो मैंने 125 रुपये दिए। आई होप आप समझ गए। तो मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है कितने जीबी के लिए, 350। ये कितने जीबी के लिए दिया मैंने, 100 जीबी के लिए। अब अगले 100 जीबी के लिए मैं कितना दूंगा वो समझना। अभी अगले 100 जीबी के लिए आप 0.5 देते थे, अब आपको 0.25 और देना है, तो अब आपको 0.75 और देना है। आई होप आप समझ रहे हो, 0.75 रुपीज़ पर जीबी। तो आपका यहाँ पे जो बिल बन जाना है, आई होप आपको समझ आ रहा है, वो 75 रुपीज़ और बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई कि 75 रुपीज़ और क्यों बनेगा। अगले में अभी आपको 350 तक जाना है, तो 100 जीबी और अभी आपको लेना है। तो यहाँ पे मैं कहाँ हूँ अब, ये 200 से 300 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे मैं 0.75 दिया करता था, 0.25 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 रुपये। तो यहाँ पे मैं 1 रुपये के हिसाब से 100 जीबी का 100 रुपये और दूंगा। तो अभी तो मैं 300 तक आया हूँ। अभी मुझे क्या देना है, अभी मुझे 50, आई थिंक 350 की बात हो रही है, तो 50 जीबी और लेना है। तो अगर 50 जीबी और लेना है तो अब मैं इस स्लैब पे आ गया हूँ, ये है 1 रुपीज़, पर इसमें 0.25 ऐड किया तो मैं 1.25 और दूंगा रुपीज़ पर जीबी। तो अगर मैंने 50 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया आई विल गेट 62.50। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 62.50 रुपीज़। तो यहाँ पे इफेक्टिवली जब आप टोटल निकालोगे आपने 350 जीबी का खर्चा, सो दैट इज 362.50। आई होप आप बात समझ पाए। तो पहले आप 300 रुपये खर्च करते थे, अब आप 362.50 खर्च करने लगे हो। यानी आपका चेंज जो आया है वो 62.50 रुपीज़ का आया है ऑन व्हाट, ऑन 300। और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। जो कैलकुलेशन करके आप परसेंटेज निकालेंगे दैट विल टर्न आउट टू बी 20.83। सो आई होप एक आसान डेटा सेट, अगर इस ओवरऑल पूरे पेपर में आप समझें तो ये डेटा सेट और एलआर के डेटा सेट बहुत सिंपल थे। फर्स्ट और सेकंड हल्के से टाइम कंज्यूमिंग थे क्योंकि वहां पे आपको चीजें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके सोचनी थी। तो आई थिंक पूरा ओवरऑल पेपर डुएबल था, मतलब आप कर सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस अगर आप ठीक से सोच पाते हो चीज़ों को। सो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे आप चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हो, कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हो और ओवरऑल कैसे फाइनल कंक्लूजन पर आ रहे हो। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।